Believe in your potential, harness your skills, and unleash your talent. Distinguished guests, esteemed faculty, and aspiring professionals, we welcome you to today's budget session. I'm Kasvi, and I'm pleased to be your host for the day. I'm confident that the knowledge imparted during this event will prove invaluable as you embark on the path to realizing your ambitions. We have assembled a panel of renowned experts to share their insights and expertise on the budget. This session is poised to be a rich and interactive experience where you have the chance to engage with our expert speakers, ask insightful questions, and deepen your understanding of the subject matter. To mark this occasion, we now invite our esteemed members of the Commerce faculty to light the auspicious diya, symbolizing prosperity and growth. We are delighted to host this event at Hansraj College, a premier institution with a legacy of academic excellence and innovation, and has been a beacon of knowledge and learning since its inception in 1948. With a rich history of producing distinguished alumni, the college continues to be a hub of intellectual curiosity and discovery. And as a part of this esteemed institution, the Commerce Society is committed to fostering a community of commerce students, promoting academic and professional development, and providing a platform for growth. Now, I would like to hand over the mic to Dr. Manjeet Singh Sagi and welcome the gathering. Very warm good afternoon, one and all present here. It truly gives me immense pleasure and feel privileged to welcome this august gathering. During this event, which is meant for panel discussion on Budget 2025, titled Breaking Down Budget 2025, What's in Store for India's Growth.
So dear friends, let me to formally welcome all our esteemed and experienced panelists of the day. So I'll start with Mr. Ashish Vij sir. Sir, you are most welcome to your own very college. So dear friends, let me to request you all to have a loud round of applause because of the reason that sir has been alumni of this college, passed from the Department of Commerce in the year 86 or 87. So he's been visiting the college, his own very college, after 40 years. So you are welcome. We welcome CA Mr. Gaurav Garg sir, who is basically he's been the chairman of the Northern India Regional Council of ICI. So you are welcome to Hansraj College. We welcome CA Mr. Anmol Gupta sir, member of the GST Council. Sir, you are welcome to the college and we are extremely thankful that you spared your valuable time. And we also welcome our very own CA Mr. Pankaj Goyal sir, because the reason that he happened to be our faculty member, our friend. So whatever we are today, this is all because of his help, his support. So I had just a very small word with him. I said, Pankaj sir, we are to organize this particular event. He said, it will be done. So we welcome you, sir. And also I take this opportunity to welcome all faculty members from the Commerce Department, from Economics Department, and May sir is here, and all the students sitting in this hall. So dear friends, it's rightly said that a book carries an ocean of knowledge, and a speaker, a good teacher, carries knowledge equal to many books. And now when we have got 4 learned, experienced and distinguished speakers, you can very well imagine the level and quantum of information, knowledge and expertise. So we are truly privileged and blessed today. Today we gather here not just as students, educators and professionals, but as keen observers of the economic forces that shape our nation's progress. The Union Budget is more than just a financial statement. It is a reflection of policy priorities, economic vision and the strategic blueprint that guides our country's development. It impacts industries, influences markets and directly affects our lives of millions. With each budget, we witness a balancing act between growth and fiscal discipline, between welfare and wealth creation, and between immediate challenges and long-term aspirations. In this discussion, we have the privilege of hearing from distinguished experts who will dissect the key provisions of Budget 2025, offering insights into its economic implications and broader fiscal impacts. They'll help us navigate the complex interplay of taxation, public expenditure and policy frameworks that drive India's economic trajectory. This session is not just about numbers and policies, it is about understanding the stories they tell, about innovation, inclusion, sustainability and more importantly, resilience. So I'd like to take the moment to express my thanks and gratitude to all present here that you spared your valuable time, and I'm hopeful that today's this discussion, this around 1.5 hours journey will be fruitful and a learning one. Thanks a lot. It takes a lot to succeed in the world of finance. Hours of study, countless exams, and nerves of steel. It is an absolute honor to introduce our distinguished speakers, renowned for their exceptional talent, unwavering dedication, and outstanding contributions to the field of finance. CA Pankaj Goyal, founder director of PA Business Consulting and a seasoned development sector and public finance specialist. With over 20 years of experience across 4 countries,
He has worked with the World Bank and served as state advisor for the Jharkhand Urban Development. A qualified chartered accountant and alumnus of SRCC and Delhi School of Economics. Mr. Pankaj has mentored over 25,000 students and received the Financial Reporting Award from ICAI in 2025. Mr. Ashish Vik is a multifaceted leader, serving as chairman of the IR-HR committee at PhD Chamber of Commerce and Industry. He also holds key positions as co-chairman of the Labour and Social Security Welfare Committee at Builders Association of India and chairman of the Infrastructure Committee at Indo-American Chamber of Commerce and Industry. Additionally, Mr. Ashish is the president of the National Federation. He is also a member of the Central Board of Trustees at the Employees Provident Fund Organization, Ministry of Labour and Employment, and a member of the Employees Provident Fund Organization, Haryana State. With a huge round of applause, let's invite Mr. Ashish Vik. Mr. Anmol Gupta, a chartered accountant and law graduate with extensive experience in indirect taxation litigation. He has worked on various tax litigation matters, authored publications, and delivered lectures at ICAI and other forums. His expertise includes drafting replies and appeals and representing clients before tax authorities. Mr. Anmol has also authored a book on the waiver scheme under Section 128A of the GST Act. He serves as the chairman of GST Committee of PFTI and convener of GST chapter in FII. Currently, he heads indirect tax litigation of APRA and Associates LLP. With a huge round of applause, let's invite Mr. Anmol Gupta. CA Gaurav Garg is a renowned taxation expert and partner at SGPM and Associates. With over 20 years of experience in tax consulting, he specializes in transfer pricing and international taxation. A prolific speaker and author, Mr. Gaurav has delivered over 700 lectures and co-authored the book Multilateral Instrument and Epitome. He is a distinguished alumnus of Sri Guru Gobind Singh College of Commerce, Delhi University. With a huge round of applause, let's invite Mr. Gaurav Garg. Good afternoon, everyone. First of all, thank you, Commerce Society and Taj College, especially Professor Manjeet, for inviting us and sharing the ideas of Budget 25 with the future of the India. We call it 2047, Viksit Bharat. तो हम लोग शायद नहीं रहेंगे उतने young, but you will be the young guys. और basically building blocks. Recently, Manjeet ji ने कहा 90 minutes. Some of the students were thinking, oh 90 minutes बैठना पड़ेगा. Don't worry. We'll structure in a way जैसे महाकुंभ में आपने dip लिया and you have a divine feeling. तो आज 90 minutes के बाद you will have a divine feeling of the knowledge also. So the entire the subset, basically the today's session will divide in that way. The entire set will be divided in 3 parts. One, Mr. Gaurav will take regarding the direct taxation. Then for 15 to 20 minutes. Next 15 to 20 minutes, Mr. Anmol will be talking about GST, right? And the next 15-20 minutes will be Mr. Ashish will be talking about the economic growth and the infrastructure. And then we can have the floor open for the audience, and then we can conclude it. But before it, why this budget was very, very important? Because ये budget NDA government का third budget था तंजौर में आने के बाद. It was a full-fledged budget, and there was a lot of hopes. And honestly, when this budget came, the market was in red. So people were anticipating there were a lot of reforms, right? शायद market green हो जाए, market means capital market की बात कर रहा हूँ मैं. And India already has some milestones and some promises. जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. The promises were 2030, SDG goals 17, which were committed to UN. Then 2047, Viksit Bharat. And 2070 are net zero emission. तो उस डायरेक्शन में इस गवर्नमेंट को बजट देने थे. Plus a tax bill, new tax bill is coming. So that Pandora box, when it was open, honestly, it has not disappointed anyone. किसको क्या मिला, right? कितना बेनिफिट हुआ वो सारा आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे. So I'll ask Mr. Gaurav to start with it. So we'll start with the first, and we'll keep the session interactive. First, let everyone complete it, and then we can have it. Very good afternoon to all of you, and thanks to the Commerce Society of Hansraj College, Manjeet ji, all the
teachers and students, and my dear friend Pankaj for inviting me here. So, role given to me is to speak on the proposals relating to the direct taxes or income taxes, we can say. The timeline is slightly thin, so we'll stick to a few important provisions. So, one of the important provision in the Income Tax Act is always the personal tax. So, as far as personal tax is concerned, we know there are, broadly we have two regimes of taxation now. One is called the old regime, and then you have a new regime. So, under the old regime, there is only one amendment. But most of the amendment, or I think major amendment, has happened in the new regime. So, under the new regime, you have now more relaxed slab rates. The nutshell of those slab rates are now till 12 lakh of the income, you will not require to pay any income tax. And if you are a salaried person, then after adding the standard deduction, so till 12 lakh 75,000, one is not required to pay any income tax. So the question comes whether one should go for the old regime or one should go for the new regime, and why we should go for an old regime or why we should go for a new regime. So answer is simple. You need to compute income under both the regimes, under the old regime and under the new regime, and wherever you get the more benefit, you can choose that regime. By default, the new regime is going to be mandatory for all of us. So if anybody wants to go for an old regime, he needs to opt for such scheme by filing an application. So now when to opt for an old regime, there is some computation has been done. So if, let's say, your income is around 10 lakhs and your deduction amount is less than 4 lakh 50,000, it is advisable to go for a new regime. But let's say if keeping your income 10 lakh, but if your deduction is more than 4 lakh 50,000, then in most of the scenarios you might like to opt for a old regime in comparison to the new regime. Another example, let's say your income is 20 lakh, but the deduction which you can claim under various provisions is, let's say, around 5 lakh 68,000. If it is more than 5 lakh 68,000, then it is advisable to go for an old regime. But if it is less than 5 lakh 68,000, then it is advisable to go for a new regime. So not in every scenario new regime would be beneficial. So the idea is you must compute your taxes under both the regimes. In last, if we go by the last assessment year, almost 72% of the Indians opted for the new regime, whereas only 28% of the individuals opted for the old regime. So does it mean that old regime is going to die? I think that time will decide. But the government is very clear that they need to come up with a new regime more. Why? You must have read the newspapers, news in the newspapers, that people are claiming fake deductions for the HRA, for the donations, and the younger generation wants flexibility. Okay, now if you want to order a food, you need to wait. You cannot wait for more than 15 minutes. So Swiggy or this Zomato, they sells for 10 minutes. So now the patience level is going down. We don't want to put our money wherein we need to block our money for 15 years in some pension funds. So we would be happy to put our money in a stock market or a mutual fund. So thinking the same and the way we have the younger generation coming up, I think government has rightly decided to come up with their new regime and give the flexibility to the younger generation where they want to put money, whether you want to put money in some old tax benefit schemes or you want to invest your own. And hopefully as we will have more takers for the new regime, maybe let's say 3 years or 4 years down the line, when the percentage of option comes to 90%, vis-a-vis 10%, 90% for new regime and 10% for the old regime, people might go, the government may close the old regime altogether and we may see
that we have only new regime in the Act. By new regime we mean a regime which is simple, which does not allow you deductions or exemptions. So the debate which is going on, or the point of contention which is going on in the new regime is, and because of the Gaurav, sorry, because most of the students here are not aware of the new regime or the old regime. In brief, you can give it. And you were mentioned about Zomato, Swiggy. I heard in the budget some information, some relief came for gigs workers. If you can just help them. And most of the students here must be from business family. How the business family and the salary people can be benefited, please. Okay, so under the old regime, there was a lot of deductions and exemptions which were allowed. For example, your HRA deductions, HRA exemption was allowed in the old regime. Under the new regime, so basically दो ऑप्शंस हैं. अगर आप पुरानी वाली ऑप्ट करेंगे तो उसमें टैक्स रेट ज़्यादा है, डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस भी ज़्यादा हैं. तो आपकी जो टोटल इनकम आती है वो कम आती है, बट टैक्स रेट ज़्यादा होते हैं. अंडर द न्यू रिजीम आपके डिडक्शंस और एग्जाम्पशंस आपको नहीं मिलेंगी. फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस अगर आप क्लेम करते हैं, एचआरए क्लेम करते हैं, तो आपको ओल्ड रिजीम में अगर आप ऑप्ट करते हैं, ओल्ड स्लैब रेट्स में ऑप्ट करते हैं, तो वहाँ पे यू गेट अ एग्जाम्पशन फॉर एचआरए. बट इफ यू ऑप्ट फॉर अ न्यू स्लैब रेट अंडर सेक्शन 115 BAC, you do not get this exemption. Similarly, for example, medical insurance premium or donation to charitable trust, ये सब वहाँ पे allowed है. Old regime में deductions and exemptions are allowed, but these are not allowed under new regime. So under new regime, the proposed slab rates are 0 to 4 lakh, 0 tax, 0% tax, 4 to 8 lakh, 5%, 8 to 12, 10, 12 to 16, 15%, 16 to 20, 20%, 20 to 24, 25%, and more than 24 lakh, it is 30%. So old versus new, new is light, old is heavy. You have a lot of sections to read. From a student perspective, अगर न्यू रिजीम में जब पुरानी रिजीम खत्म हो जाएगी, सिर्फ नई रिजीम में इनकम टैक्स देखेंगे तो याद करना आसान होगा. बहुत कम रिडक्शन एग्जाम्पशन से कंप्यूटेशन इजी हो जाएंगे. So on the gig workers, as such, there is no proposal in the Direct Tax Act. I think it's a policy matter on which government is thinking very seriously. Gig workers are, we know that जितने new startups आ रहे हैं, otherwise now they are forming a major part of the labor. They are forming an important sector which needs to be taken care. They are not exactly the employees. उन पे labor law कैसे लगेंगे, government की क्या policy होनी चाहिए. I think through this speech, Honorable FM has told that they are thinking seriously for the gig workers, because they now form a big chunk of population of India, working population of India. So we might be having, and not might be, we for sure we would be having some policy to take care of those gig workers, maybe through some labor law. Gaurav, one more thing, I think he was mentioning कि HRA और loan, I believe maximum यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, especially जो कॉलेज के स्टाफ हैं, they are claiming HRA, right? There is a basic confusion हमेशा रहता है. Maximum we take a housing loan, right? अब housing loan भी है और HRA भी है. तो can in the old regime we can claim both, and under the new regime can we claim both? और last point I remember in this budget there was some relief given कि अगर आपके पास 2 घर हैं, right? तो can you give a clarity on that, please? मैं पहले proposal पे आ जाता हूँ. Please. Currently, as far as house property is concerned, but उससे पहले ना एक छोटा सा और point clear कर लेते हैं relating to rebate. So now we have a section 87A. आपने पढ़ा होगा या पता होगा आपको. तो उसमें क्या है कि अगर आपकी income 12 लाख से ज़्यादा है, you do not get rebate under 87A. You get rebate if your income is till 12 lakhs. तो उसमें आपको 60,000 की extended rebate मिल जाती है, tax मिल हो जाता है. But question comes, let's say, if you have a income from capital gains also, then whether this capital gain would also be taxed at the slab rate. So let's say you have two kinds of income. You have a salary income and you have a long-term capital gain or a short-term capital gain. The question comes, this slab rates which government has introduced,
I need to apply on the total income, means on the salary income as well as long-term capital gains, or I need to apply this slab rate only on the salary income, and I need to apply the special rates given under 111A or 112A on the short-term or long-term capital gains. So there was a debate earlier in the earlier provisions. The matter went to the court, and the court has said that 87A, the benefit of rebate, should be given even on those incomes which are taxable under special rates. But this budget means proposal may they have tried to cover up that issue. They are saying, if you read memorandum explaining the finance bill कहता है कि ये जो स्लैब रेट नए आए हैं वो आपकी स्पेशल रेट, जो इनकम स्पेशल रेट पे टैक्स होनी चाहिए, उस पे स्लैब रेट वुड नॉट बी एप्लीकेबल. मीनिंग इफ यू हैव अ कैपिटल गेन एंड इफ यू हैव अ सैलरी इनकम, तो ये जो 12 लाख तक का स्लैब रेट है फॉर एग्जांपल, वो सैलरी पे तो लगेगा बट कैपिटल गेन पे नहीं लगेगा. तो कैपिटल गेन की जो नॉर्मल रेट है 12.5% और 20% आपको उस पर टैक्स देना है, और सैलरी का आप अलग से टैक्स निकालोगे, उस पर अलग से टैक्स दोगे. मीन्स जो आपकी 87A की रिबेट है 60,000 की, that 60,000 rebate is not available on any income which is chargeable at the special rate. So if you have a special rate in the act, 12.5 for 20% for the sake of simplicity, और long term short term capital gain, तो वो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा. मान लीजिए आपकी 8 लाख की सैलरी इनकम है एंड 2 लाख का कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. तो हाउ टू डील विद इट? तो टोटल इनकम 10 लाख हो गई, तो मैं 8 लाख का स्लैब रेट से टैक्स निकालूंगा, और 2 लाख का मैं सीधा, इफ इट इज अ शॉर्ट टर्म 20% कर दूंगा, लॉन्ग टर्म में तो 12.5% कर दूंगा. तो 8 लाख का टैक्स स्लैब रेट का प्लस जो मेरा कैपिटल गेन का टैक्स आया, वो उन दोनों को ऐड करके माई टैक्स लायबिलिटी विल कम. तो मुझे रिबेट है वो सिर्फ 8 लाख तक मिलेगी. नाउ अज्यूमिंग लेट्स से you have a 11 lakh salary income and you have a 2 lakh as a capital gain. तो आपकी total income कितनी हो गई? 11 plus 2, 13, which is more than 12. Are you eligible to claim rebate? इस पे the law is not very clear. If we go to the computation, जब हम online form salary forms fill करते हैं, तो online salary forms में अभी वो 11 टोटल इनकम 13 माइनस 2 करके 11 पे स्टैंडर्ड डिडक्शन देता है. बट लॉ इज नॉट ड्राफ्टेड इन दिस वे. लॉ सिंपली कहता है अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा, यू आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम द रिबेट. सो आई थिंक ऑन दिस पॉइंट वी नीड सम क्लैरिफिकेशन और मे बी मोर क्लियर वर्डेड लॉ व्हिच माइट कम इन अप्रैल. फाइनेंस एक्ट जब आएगा तो उसमें और क्लियरिटी से गवर्नमेंट को आना पड़ेगा कि हाउ द स्टैंडर्ड डिडक्शन विल प्ले इट्स रोल, and when it would be applicable, when it would not be applicable. I think first time in the history, government has issued a FAQ on the budget. So now when the law would be more clarified in form of, अभी तो it's still a bill and not an act. तो जब bill से वो act बनेगा तब उसमें जो clarity आएगी, उसके लिए it would be beneficial for the government in order to remove the litigation if they can also come with a FAQ on this standard deduction, taking various examples that when standard deduction would be applicable. This is one point of litigation or debate currently as far as standard deduction is concerned. Now coming to the house property point. अभी क्या है कि if you have, let's say, more than one house property, if you have 2 house property, आप एक में रह रहे हैं, one is self-occupied and another is not self-occupied, and if it is not occupied because of your business reasons, because of your employment, in that case आप उस house property की annual value nil ले सकते हैं. But आपका एक ही शहर में अगर 2 properties हैं, then what will happen? So it used to be a debate, it used to be a litigation point. If you have 2 house property, उसका जो रीजन है, एक में आप रह रहे हैं एक खाली है, उसका क्या रीजन होगा? तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स यूज्ड टू लिटिगेट. नाउ इन द बजट दे हैव प्रपोज्ड दैट अप टू द 2 हाउस प्रॉपर्टीज यू कैन क्लेम अ बेनिफिट
that you can say that house in दो house property की value annual value is nil. कोई भी reason, ठीक है, चाहे वो बैंगलोर में हो, दिल्ली में हो, आपकी दिल्ली में दो हाउस प्रॉपर्टी हो, इफ यू आर नॉट एबल टू ऑक्यूपाई दोस टू हाउस प्रॉपर्टी, एक में रह रहे हैं एक खाली पड़ी है, दोनों की वैल्यू आप निल ले सकते हैं. अगर आप उनकी वैल्यू निल लेंगे, so then we have a section 24 subsection 2 which allows you 24 subsection B which allows you some deductions. उसमें अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन है, if it is self occupied, तो 2 lakhs तक that deduction is limited. And if it is not self occupied, उसकी annual value निकाल रहे हैं, then deduction can be any amount. Now when you are taking these two properties as self occupied, the deduction gets limited to rupees 2 lakh, and this 2 lakh is the aggregate value of deduction and not 2 lakh per property. तो 2 लाख तक आपकी अब डिडक्शन कर्टेल हो गई, आप उससे ज्यादा नहीं ले सकते. तो देयर could be a scenario, we are saying it is useful, it is beneficial provision which they have brought it, but it could be a not benefit for the people who have already taken a loan. अब वो लोन ले रहे हैं और उनकी एनुअल वैल्यू से ज़्यादा इफ दे आर पेइंग इंटरेस्ट उनको लॉस मिल जाता था. बट व्हेन यू विल क्लेम इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, आपका टोटल इंटरेस्ट कितना रिस्ट्रिक्ट हो गया? 2 lakhs. तो अगेन दिस प्रोविजन विल बेनिफिट यू और नॉट बेनिफिट यू इज समथिंग पॉइंट ऑफ डिबेट. नाउ एज फार एज HRA is concerned, I understand if you have a if you know you have a house, let's say in Shimla, for which you have taken a loan, and if you are working in Bombay, तो बॉम्बे में आप रेंट पे रह रहे हैं, then you can very well claim HRA. और वो आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, तो उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको अभी पुराने रिजीम में आप उसको निल वैल्यू दिखाएं, बिकॉज नाउ यू आर नॉट ऑक्यूपाइड दैट प्रॉपर्टी फॉर द रीजन ऑफ बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट, या आप उसकी एनुअल वैल्यू निकालें और इंटरेस्ट लेस करके जो भी लॉस आ रहा है वो क्लेम करें. हाउस रेंट अलाउंस आपको तभी अलाउ होता है जब आपने एक्चुअल रेंट पे किया होता है. तो इफ यू कैन प्रूव कि मैंने एक्चुअल रेंट पे किया है, आई थिंक वहां पे कोई डी बार नहीं करता आपको कि आप उसको डिडक्शन ना क्लेम करें. बट इफ लेट्स से यू हैव ऑप्टेड फॉर अ न्यू रिजीम, देन HRA इज नॉट अलाउड. सो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू वॉच आउट. Now if I am paying interest and if I have got two house property, तो मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूँ, उसको नहीं मानूँ, इंटरेस्ट कंप्यूटेशन करूँ, HR डिडक्शन लूँ, इंटरेस्ट डिडक्शन लूँ, एंड देन आई माइट ऑप्ट फॉर एन ओल्ड रिजीम विद न्यू रिजीम. बट व्हाट आई एम सेइंग, इट नीड्स कंप्यूटेशन. आप एक्सेल में जब कंप्यूट करेंगे, देन ओनली यू कैन टेक अ कॉन्शियस कॉल वेदर यू नीड टू गो फॉर एन ओल्ड रिजीम और यू नीड टू गो फॉर अ न्यू रिजीम. जैसे वी नो कि जब से न्यू रिजीम हमारे पास आया है, तो वी आर सेइंग कि न्यू रिजीम में ये डिडक्शन ATC और जो अदर डिडक्शन हमें अवेलेबल नहीं है, और गवर्नमेंट जो है फिर से इसी को और लुक्रेटिव बनाती जा रही है न्यू टैक्स रिजीम को. तो एक तो मेरा उसमें क्या ऐसा कि गवर्नमेंट सेविंग को डिस्करेज कर रही है. दूसरा, जो लोग अभी पिछले कुछ दिनों में या अभी ज्वाइन किया नौकरी में लगे, उन्होंने उन डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए 15 साल वाला लॉकिंग पीरियड जैसे कुछ ऐसे वेन्यूज़ में इन्वेस्टमेंट किया, जैसे PPF. अब गवर्नमेंट कहती है कि अब आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, अब 15 साल के लिए आप उसमें फिर से फंस गए. नेशनल पेंशन स्कीम जब गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी, तब उन्होंने कहा कि जब आप NPS आप ले रहे तो आपको ATC में एक्स्ट्रा 50,000 फिर आपको डिडक्शन देंगे. अब वो नेशनल पेंशन स्कीम के वो डिडक्शन की जरूरत भी आपने खत्म कर दी, तो फिर वहाँ एम्प्लॉयज़ के साथ फिर प्रॉब्लम. आप पुरानी के साथ चलना चाहते हैं, कोई नहीं रोक रहा आपको, बट जो हमें समझना पड़ेगा, जो मेरी आज की नई जनरेशन है, उनके पास मल्टीपल एवेन्यूज हैं टू इन्वेस्ट, एंड देयर आर प्लस एंड माइनसेस ऑन बोथ साइड. व्हेन वी से कि व्हेन आई एम इन्वेस्टिंग फॉर 15 ईयर्स, तो 15 साल बाद मेरी एक मेच्योरिटी लेवल होगा, मुझे पता है पैसा कहाँ खर्च करना है जब मैं निकालूंगा, and in that meantime it would be funding the infrastructure of my country. But now the way government is thinking, they are relying less on the savings of the household, हालांकि still form major chunk of the revenue,
But now we have a public-private partnership, which is a new mode of financing. And if you see the major amendments which have happened, other than personal tax, is relating to the GIFT City or IFSC, International Financial Service Centers, wherein we have relaxed many dates, जो 31st March 2025 को expire हो रही थी. From 31st March 2025, we have extended to 31st March 2030, wherein we are asking the non-residents to come and invest in India through that IFSC. We have asked sovereign funds, wealth funds to come and invest. We are investing, we are calling FIIs, FPIs. तो गवर्नमेंट का फोकस ये है कि यार विदेश से पैसा लेके आओ और अपने टैक्स सिस्टम, जैसे 1975 में टैक्स रेट यूज्ड टू बी वेरी हाई, बट देन दे वर रिलैक्स्ड, है ना. अभी टैक्स रेट्स और कम हो गए. तो अभी देखिए, इकोनॉमिक्स में कहा जाता है कि अगर आप पैसा खर्च करेंगे तो वो लौट के इकोनॉमी में ही आएगा. सो नाउ इंस्टेड ऑफ गवर्नमेंट मॉनिटरिंग योर सेविंग्स, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग योर फंडिंग, अब गवर्नमेंट कह रही है आपके पास पैसा है, आप खर्च करो जहां आपको अच्छा लगता है. आपको स्टॉक मार्केट में लगाना आप लगाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 15 साल तक मुझे उस चीज को भी तो मैनेज करना है. अब चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ क्या हुआ, 80 जी की डोनेशन के लिए हम जाते हैं, पैसे देते हैं, कैश ले लेते हैं, वो ट्रस्ट फेक चलने लग रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज फेक चल रही है, करेक्ट. लोग रेंट नहीं दे रहे फिर भी HRA क्लेम कर रहे हैं. सो नाउ देयर इज अ पैरेलल इकोनॉमी व्हिच वाज गोइंग ऑन, वो हमने खत्म कर दी एक किस्म से. आज आप 12 लाख की जब टोटल इनकम की रिटर्न सबमिट करेंगे तो वो भी तो एक इंडियन इकोनॉमी को ऊपर लेके जाएगा. तो वर्ल्ड लेवल पे जब हम देखेंगे कि हमारी कितनी इनकम राइज हुई, वो जो पैरामीटर्स हैं क्रेडिट रेटिंग के, वो सब उस चीज पे पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगे. एंड व्हेन आई विल गो फॉर अ फंडिंग एट दी, आई थिंक पंकज भाई ज्यादा बेटर बता पाएंगे, इफ कंट्री हैज अ गुड क्रेडिट रेटिंग, इट ऑब्वियसली हेल्प यू इन सिक्योरिंग अ चीपर लोन फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट. So, sir, can I move further? The another amendment which you will see in again relating to personal taxation is TDS. TDS में बहुत ज़्यादा relaxations कर दी, specifically in case of rent. अभी जो rent का TDS है, it was used to be applicable if the rent payable during the year is more than 2,40,000. Now it has been brought to 50,000 per month. Not 6 lakh, 50,000 per month. अगर आपका 50,000 से रेंट ज्यादा आ रहा है तो टीडीएस लगेगा, 50,000 से कम है तो नहीं लगेगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3 महीने का आपने रेंट पे किया 60,000 पर मंथ के हिसाब से, टीडीएस इज एप्लीकेबल दो इट इज लेस देन 6 लाख. अगेन द आइडिया इज कि मैं हाउस होल्ड इनकम को इंक्रीज कर, लोगों के हाथ में जितना पैसा जाएगा उतना वो बाजार में जाएगा, इकोनॉमी में जाएगा, मार्केट में जाएगा, एंड इट वुड बी यूज्ड फॉर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. Similarly, I just spoke IFSC, International Financial Service Center. Again, lot of relaxation has been done. More specifically, one of the interesting amendment which has been proposed in case of it is in case of ULIP. Currently, if you see the ULIP products, if your premium amount is less than 10% of the assured amount, तो आपको ULIP का benefit मिलता है, and if it is more than that, आपको ULIP का benefit नहीं मिलता. There is additional limit which is 2,50,000 for the ULIP products and for other products 5 lakh. इससे ज़्यादा आपका प्रीमियम नहीं होना चाहिए. But when it comes to IFSC, government has relaxed this provision. So if any non-resident wishes to invest in a ULIP product wherein the premium could be let's say 5 lakh, 10 lakh, 50 lakh, it has been allowed. They want कि हाँ आप इसमें पैसा लगाएं. After IFSC, we can discuss one more important amendment is the updated return. How much time I have? One more important amendment is the updated return. Updated return में what happens कि currently it is allowed till 2 years from the end of the assessment year. अगर आप 2 साल तक आपको लगता है कि you have escaped any income या आप कोई income extra declare करना चाहते हैं, you can pay additional tax of 25% in the first year, 50% in the second year, and file your updated return. Now the government has allowed this updated return to be filed for 4 years.
from the end of the relevant assessment year. 4 years में 60%, थर्ड ईयर में 60% एंड फोर्थ ईयर में 70% आपको देना है. 70 पर एडिशनल 70% ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट आप उसका एडिशनल दीजिए, अपने रिटर्न फाइल करिए और चिंता से सो जाएगी, मतलब बेफिक्री से सो जाएगी. बट नाउ वन नीड्स टू सी इफ माई इनकम एस्केप्स द असेसमेंट, in that case I need to pay 50% of tax and interest. So this 70% slab or a 60% slab in third year and fourth year is slightly on the higher side in comparison to income escaped assessment, क्योंकि वहाँ 50% देना पड़ेगा of tax and interest. But वहाँ पे अगर आपकी assessment खुलती है तो the scope of assessment is much wider. They can again reassess all your papers. नॉट ओनली जो आपका छूट गया, जो आपसे आपको लग रहा है छूट गया, बट कुछ और भी होगा, दे कैन ऑलवेज कम आउट. सो हाउ टू यूज दिस अपडेटेड रिटर्न वाला इशू. मान लीजिए आपकी क्रिप्टो की इनकम थी, आपने डिस्क्लोज नहीं करी, आपकी शेयर की इनकम थी विच यू हैव नॉट डिस्क्लोज. नाउ टेकिंग द एडवांटेज ऑफ दिस अपडेटेड रिटर्न यू कैन ऑलवेज डिस्क्लोज. मोर इम्पॉर्टेंटली इफ यू हैव फॉरेन एसेट्स, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव है ये. If you have read a few weeks back or a month back, there was a news in the newspaper that जिन लोगों ने दुबई में इन्वेस्ट किया है, यूएई में इन्वेस्ट किया है, गवर्नमेंट गॉट द डेटा ऑफ ऑल दोज पीपल. अभी तक क्या होता था कि आपको यूएई में इन्वेस्ट करना है, सम ब्रोकर विल कम टू इंडिया फ्रॉम यूएई. वो आपसे इंडिया में कैश पकड़ लेगा, आपके वहाँ रजिस्ट्री करा देगा, प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी. एंड मेनी इंडियंस इन्वेस्टेड द मनी इन यूएई. बट देन इंडिया इज इंडिया साइड यूएई बॉस ऐसे नहीं चलेगा. आई वांट डेटा जिन ने यहाँ पे प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी है. एंड यूएई गेव ऑल द डेटा, क्योंकि वहाँ आपका पासपोर्ट का डिटेल जाता है व्हेन यू बाय द प्रॉपर्टी. UAE gave all the data and we have a data collection center in Germany. The data went to German office, came to India और उन सब के वहाँ इनकम टैक्स की रेड हो गई. पहले इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन में डेटा नहीं दिया तो रेड हो गई. So now if you have not received that notice for the property purchased in UAE, because in income tax return it is mandatory to disclose the foreign assets. And if you have foreign assets you have not disclosed, तो फिर हम उसकी इनकम टैक्स में असेसमेंट नहीं करते, हम उसकी ब्लैक मनी एक्ट में असेसमेंट करते हैं. सो नाउ इफ एनी वन ऑफ यू कि किसी के वहाँ पे एसेट है जो डिस्क्लोज नहीं करे हैं और अपडेटेड रिटर्न का टाइम है, मेरी एडवाइस आपको ये है कि आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर लीजिए. इट माइट हैपन, अभी क्रिप्टो में भी चेंज आया है. दे हैव डन, वी नो क्रिप्टो की इनकम टैक्सेबल है. So India has introduced a provision in this budget जहाँ पे वो कुछ entities को they will say it is a specified entity, you are a specified entity and I want information from you, कि मैं ऐड कर रहा हूँ, I want information from you of all the Indians investing through your platform. अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं आता है. Let's say if you are investing through a entity in UAE in crypto, we don't have the data. But if I will say UAE entity is a specified entity और मैं उससे डेटा ले लूंगा, तो मैं क्या करूंगा डेटा लेके? नोटिस भेजूंगा आपको. तो आप अपडेटेड रिटर्न का यूज कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये मैटर है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दें, बिकॉज अदरवाइज द रिटर्न में बी असेस्ड अंडर ब्लैक मनी है. सो थैंk you to all of you for being a wonderful audience. I'm still here and we can have more questions. Thank you, Gaurav ji. Now I would like to invite Mr. Anmol to clarify whether GST 2017 में आया था. Just to give an insight, लोग उसे गब्बर सिंह टैक्स भी कहते थे कुछ पार्टी, कुछ गुड्स सर्विस टैक्स कह रहे हैं. And honestly, because I'm into public finance area, जीएसटी आने के बाद बहुत सारी स्टेट्स की इनकम कम हो गई है, स्पेशली शहरों की इनकम. बिकॉज पहले क्या था, हर शहर वैट लगाता था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकल टैक्सेस लगाता था. जीएसटी आने के बाद वो कंसोलिडेटेड टैक्स हो गया. अब उसकी रीजन की वजह से सिटीज की इनकम कम हो गई. मैं महाराष्ट्र का एग्जांपल लेता हूँ.
महाराष्ट्र में जो शहर है, पुणे है, पिंपरी चिंचवाड़ा है, राइट, उनकी इनकम टैक्सेस से, लोकल टैक्सेस से बहुत ज़्यादा आते थे। जीएसटी आने के बाद कभी कंपैरिजन करिएगा, रिसर्च का वर्क है, बहुत लेस हो गया है। और यही रीज़न है महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपनी स्टेट फाइनेंस कमीशन, एक बॉडी होती है जो स्टेट सिटी को पैसा देता है, स्टेट फाइनेंस कमीशन एक अलग से लोकल बॉडी टैक्सेशन कंपनसेशन देता है वहाँ पर। तो नाउ अनमोल वुड क्लैरिफाई कि जीएसटी क्या है, इनपुट क्रेडिट क्या है, गब्बर से क्या है, या गुड सर्विस टैक्स है, और क्या रिलीफ मिला है। क्योंकि ऑनेस्टली इंडिविजुअल्स को तो लगता है भैया टेलीफोन बिल, एयरटेल बिल, कहीं भी बिल पे कर दिए में जीएसटी लग रहा है, उसका बेनिफिट हम कैसे क्लेम कर सकते हैं, प्लीज वो बताइएगा। Respected teachers, my esteemed panel, and my dear students, a very good afternoon to all. At the outset, would like to thank Hansraj College Department of Commerce for giving me this opportunity to come today and share my knowledge. I am very honored to come before you all today. Generally, I have an experience of speaking before various professionals like chartered advocates, but I feel Manjeet ji ने मुझे आज बुलाया because he wanted one youngster on the panel to connect with you all today. So I'll try कि मैं अपने deliberation को as simple as possible रखूँ, technical पे ना लेके जाए, because ऊपर से चला जाएगा सर टेक्निकल अगर हो गया तो इट इज़ नॉट मतलब फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को डिस्कस करने का. सो द टॉपिक दैट हैज़ बीन गिवन टू मी इज़ द जीएसटी and what changes have been proposed in the finance bill. I am using the word proposed because it is very important to understand for all the students that finance bill does not bring any change in itself. It only proposes a change, and when president gives the assent to the finance bill, then only some changes are notified, while other changes come into effect from a date which central government notified by way of a notification in official gazette. So all these changes that we are discussing here today, these are the changes which have been proposed by the finance bill. सर अब अगर चेंजेस की बात करने जाएंगे तो चेंजेस तो क्या है कि एक्ट में डेफिनेशंस चेंज कर दी, प्रोविजन को रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर दिया. इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट डायरेक्टली तो सब ऊपर से जाएगा सर. तो सबसे पहले एक बार डिस्कस करते हैं बहुत ब्रीफ में. लेट अस डिस्कस एन ओवरव्यू ऑफ द जीएसटी. आई फील आपके कोर्स में भी जीएसटी इज ऑलरेडी अ सब्जेक्ट, सो यू माइट बी अवेयर अबाउट सम पार्ट्स ऑफ द जीएसटी, बट लेट मी डिस्कस सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द जीएसटी. जैसा सर कह रहे थे अभी हम बैठे थे कि थ्योरेटिकल नॉलेज तो है सबको बच्चों के पास, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज की बहुत जो है जरूरत है. सो सबसे पहले जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी किस पे लगता है साहब? सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो जीएसटी में है, सबसे पहला कंसेप्ट दैट इज सप्लाई. सप्लाई हमारा कहां पे डिफाइंड है? सप्लाई हमारा सेक्शन 7 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में जो है डिफाइंड है. अब सप्लाई के लिए कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं. सबसे पहले इंग्रेडिएंट, वन पर्सन शुड बी सप्लाइंग टू द अदर पर्सन. कैन आई गिव अ सप्लाई टू माई सेल्फ, वेदर इट विल बी टैक्सेबल? क्या मैं कह सकता हूं मैंने इस जेब से पैसे निकाले, इस जेब में डाले, टैक्सेबल हो गए, मेरे को जीएसटी देना सरकार को? नहीं. सो द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज देयर शुड बी टू पर्संस हु शुड बी इन्वॉल्व्ड. If you want to levy GST on a particular transaction, there is a need for two persons to be involved. Second important aspect is there should be a supply of goods or services, which we call in legal terminology is quid pro quo. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ दे रहा हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैश के बदले ही दे रहा हो, कुछ भी, चाहे बार्टर भी है, बार्टर भी जीएसटी में टैक्सेबल है, बार्टर भी सप्लाई के डेफिनेशन में फॉल कर जाता है. तो देयर शुड बी अ फ्लो ऑफ क्विड प्रो क्यो फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो गुड्स और सर्विसेज दोनों का हो. देन द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज देयर शुड बी अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड. क्या मैं मंदिर में जाके दान देकर आता हूं, जीएसटी लगता है? नहीं. रीजन, देयर इज नो क्विड प्रो क्यो इन्वॉल्व्ड. देयर इज नो क्विड प्रो क्यो इन्वॉल्व्ड बिकॉज जब मैंने मंदिर को पैसे दिए, कंसिडरेशन है, मैंने दिया 100 रुपए, लेकिन क्या बदले में मंदिर ने मुझे कुछ दिया? नहीं. क्या अगर मैं किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट को डोनेशन देता हूं तो जीएसटी लगता है? नहीं. लेकिन अगर मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूट को डोनेशन देते हुए बता दिया, कंडीशन लगा दी कि योर रिसर्च शुड बी ओनली इन दिस डोमेन,
that means indirectly I am benefiting from that donation. There is a quid pro quo involved. GST would be leviable. क्या अगर मैं किसी से फ्री ऑफ कॉस्ट को सप्लाई ले लेता हूं तो जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा, बिकॉज देयर शुड बी अ कंसिडरेशन. इवन इफ देयर इज अ क्विड प्रो क्यो, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, नो जीएसटी वुड बी देयर. इसके कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन सर वो एक्सेप्शन शेड्यूल 1 में लिखे हुए हैं. शेड्यूल 1 में 4-5 आइटम्स हैं. अगर आप इनमें फॉल करते हैं तो इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, इवन देन द जीएसटी वुड बी लेविड. देन द अदर कंसेप्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, 4 स्तंभ है सर सप्लाई के. चौथा स्तंभ, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. किसी ने पीछे से आवाज लगाई, मेरे को सुनाई दिया, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. क्या मैं सर को अपना मोबाइल फोन, यूज्ड मोबाइल फोन बेच दूं तो जीएसटी लगेगा? नहीं. रीजन, क्या मैं उसका बिजनेस कर रहा हूं? नहीं. मैं तो एक कंज्यूमर की तरह से, मेरे पास एक फोन पड़ा था, डैमेज्ड फोन था, अनयूज्ड फोन था, मैंने सर को 5,000 रुपए में बेच दिया. There is no in the course of furtherance of business and hence it won't be covered under the term of supply. If it is not covered under the term of supply, no GST will be there. पूरा का पूरा GST लॉ ही उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होएगा. But if it is covered under the scope of supply, we need to see whether it is a taxable supply or it is a exempt supply or it is a non-taxable supply. नॉन टैक्सेबल सप्लाई कौन सी है? जो शेड्यूल 3 में अपनी नोटिफाइड है, बहुत सारी है. जैसे एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है तो एम्प्लॉय सर्विसेज देता है कि सर मैं आया, मैंने 10 घंटे लगाए आपके ऑफिस में बैठ के काम किया, आपने जो टास्क दिया आई डिड. कंसिडरेशन होता है, सैलरी मिलती है, बट इट हैज बीन कैटेगराइज्ड एज अ नॉन टैक्सेबल सप्लाई बाय वे ऑफ शेड्यूल 3 टू द जीएसटी एक्ट. तो जो नॉन टैक्सेबल सप्लाईज है, वी नीड टू सी वेदर वी आर फॉलिंग अंडर शेड्यूल 3. इफ वी आर नॉट फॉलिंग अंडर शेड्यूल 3, देन वी नीड टू गो टू द एग्जम्पशन नोटिफिकेशंस. क्या मैं एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में फॉल कर रहा हूं? फॉर गुड्स द एग्जम्पशन नोटिफिकेशन इज 2 of 2017 dated 28 June 2017, central tax rate. For services, the exemption notification is 12 of 2017, central tax rate dated 28 June 2017. So if my goods or services are falling under this notification, then my service is exempt or my goods are exempt. But अगर मेरा नॉन टैक्सेबल में भी नहीं है, मेरा एग्जम्पशन में भी नहीं है, then whatever supply I am providing, it is a taxable supply. अब क्वेश्चन एक ये भी आता है कि कुछ कुछ सप्लाईज ऐसी होती हैं जो मिक्स्ड नेचर की होती हैं, जिसको असरटेन करना बड़ा मुश्किल होता है कि वेदर इट इज अ गुड्स और इट इज अ सर्विस. बिकॉज क्यों असरटेन करना है गुड्स है सर्विस है? क्योंकि गुड्स है तो गुड्स वाला टैक्स रेट लगेगा, सर्विस है तो सर्विस वाला टैक्स रेट लगेगा. So in order to ascertain whether the service or goods that you are supplying, it falls under which category, you need to go to schedule 2 of the GST Act. जैसे एग्जांपल है रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी सर्विस. पुराने लॉ की अगर बात की जाए तो जजमेंट्स आई दैट इट इज अ डीम्ड सेल. जब सर्विस टैक्स उस पर लगता था तो इन्होंने नोटिफाई किया, सरकार ने नोटिफाई किया शेड्यूल 2 में कि किसको हम गुड्स मानेंगे, किसको हम सर्विस मानेंगे. अब बात आती है सर, हु विल पे द जीएसटी? आई हैव डिटरमिन्ड दैट आई एम प्रोवाइडिंग सर्टेन सप्लाई टू सर. Whether sir is liable to pay GST to the government exchequer or I am liable to pay GST to the government exchequer. डायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट है सर कि जो कमाएगा वो देगा. इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट है जो कमाएगा वो नहीं देगा, दूसरा देगा. मैंने अगर सर को सर्विसेज दी, आइडियली सर को क्योंकि 100 रुपीज की कॉस्ट आ रही है, sir should pay the taxes to the government, but indirect taxes itself means sir will pay 18 rupees GST to me and I will deposit to the government exchequer on sir's behalf. So it is the service provider or the seller who has to pay GST on a particular transaction, on a particular supply of goods or services or both. But there is a concept of reverse charge mechanism also under GST. What is reverse charge mechanism? In certain exceptional cases, I'll tell you why they are exceptional cases. In certain exceptional cases, the government has notified by way of notification number 13 of 2017, central tax rate dated 28 June 2017, that no, service provider will not pay the taxes, service receiver will pay the taxes directly to government exchequer. Meaning thereby, I'll raise my invoice of 100 rupees to sir, sir will pay me only 100 rupees, but pay 18 rupees directly to the government exchequer as a recipient of that service under reverse charge mechanism, which we popularly call RCM, reverse charge mechanism.
अब क्यों सर ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि बहुत केसेस में जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो इंडिविजुअल होता है. यू कैन नॉट बर्डन द कंप्लाइंस, जैसे सर ने बोला गब्बर सिंह टैक्स, बिकॉज देयर आर, व्हाई इट इज कॉल्ड गब्बर सिंह टैक्स? बिकॉज द कंप्लायंस बर्डन इज वेरी ह्यूज. हर महीने रिटर्न भरे जाओ, कोई गलत भर गई तो उसके बाद जीएसटी से नोटिस आ गया, यू हैव टू रिप्लाई टू दैट नोटिस. Authorities may sometimes accept your reply, sometimes may not accept your reply. If they don't accept your reply, you have to go to the appellate forum, you have to approach the tribunal, you have to approach the high court. Added compliance cost, added burden. So in some cases the services are being provided by an individual, not by a company, not by a partnership firm, but an individual. So the law says if the services are being provided by an individual to a body corporate, to a company, to a partnership firm, in that case, since the company is already registered under the GST Act, they are already complying with the provisions of the GST law. They are already filing the return. They have to pay under the reverse charge mechanism. One such example is the services of the advocate. They have said कि अगर कोई advocate services provide कर रहा है, advocate नहीं करेगा सर GST पे. Advocate अगर एक body corporate को कर रहा है तो वो करेगा. लेकिन अगर जो advocate एक कंपनी लॉ फर्म है वो अगर सर्विसेज प्रोवाइड करिए तो देन दैट कंपनी हैज टू पे द टैक्सेस. बट एक इंडिविजुअल एडवोकेट अगर प्रैक्टिस कर रहा है, ही वोंट पे द टैक्सेस, द बॉडी कॉर्पोरेट विल पे द टैक्सेस. ये तो सर हो गया एक बेसिक थीम. इसमें और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं. गिवन द टाइम फ्रेम आई विल नॉट गो इनटू दैट. जैसे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया. टाइम ऑफ सप्लाई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच डिटरमाइंस व्हेन यू हैव टू पे द टैक्सेस. ये समझ आ गया सर, सप्लाई में फॉल कर गया. ये समझ आ गया टैक्सेबल है. ये समझ आ गया कौन पे करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कब पे करना है. So for that you need to go to section 12 and section 13 of the GST Act which determines the time of supply ki when my services or my goods shall be deemed to be provided so that I need to pay the taxes in the following month, GSTR 1 and GSTR 3. Then there is another concept of place of supply. अब क्वेश्चन एक और आता है सर, सप्लाई हो गई, टैक्सेबल है, सर्विस प्रोवाइडर देगा, टाइम ऑफ सप्लाई भी पता चल गया, मैं लगाऊं क्या अपने बिल पे? क्योंकि आपको पता है जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी 3 कंसेप्ट हैं. तो मैं सी लगाऊं, एस लगाऊं या आई लगाऊं? फॉर दैट आई नीड टू गो टू दी प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस व्हिच आर देयर इन आईजीएसटी एक्ट 2017. प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस क्या बोलते हैं? अगर मान लीजिए सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा. लेकिन अगर सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेपरेट स्टेट में है तो इन दैट केस आईजीएसटी लगेगा. वन सच एग्जांपल आई विल गिव यू. I am an event management company. I am organizing an event. I am registered in the state of Delhi. Let's suppose I am registered in the UT of Delhi. I am organizing an event going to the Gurgaon and I am organizing an event in Haryana. So place of supply, as per the provisions of place of supply, it says that the place of supply falls in Haryana. So I am in Delhi. Place of supply is in Haryana. What will be charged? IGST. If I am in Delhi and the place of supply is also in Delhi, then CGST and SGST. अब ये सब पता चल गया कौन पे करेगा, कब पे करेगा, कैसे पे करेगा. अब बात आती है क्या रेट ऑफ टैक्स पे होगा. तो सर हमारे जीएसटी में 5 रेट ऑफ टैक्सेस है. फर्स्ट इज 0% जो एसेंशियल कमोडिटीज पे है लाइक मिल्क, एग्स, वाटर. देन 5% जो कि कोल, ऑयल्स, एडिबल ऑयल्स, टी, लाइफ सेविंग ड्रग्स पे है, रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स दैट वी से. 12% जो कि जनरली हाउस होल्ड आइटम्स पे, रेगुलर आइटम्स पे है. 18% मेजॉरिटी सारे आपके गुड्स और सर्विसेज 18% में, सर्विसेज तो आपकी मेजॉरिटी 18% में फॉल करती है. तो 18% इज स्टैंडर्ड स्लैब बेसिकली कि सब कुछ जो बचा वो 18% में आ गया. एंड देन हाईएस्ट रेट ऑफ स्लैब बीइंग 28% जहां पे लग्जरी गुड्स आते हैं. फॉर एग्जांपल कार्स, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, सिम गुड्स आते हैं. फॉर एग्जांपल टोबैको, सिगरेट, एरिएटेड ड्रिंक्स. तो ये सब आपके 28% पे जो है टैक्सेबल है. अब सर ने एक बात बोली कि स्टेट्स को पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सर इंप्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, लेट अस नॉट गो इनटू दैट बिकॉज दैट इज समथिंग व्हिच गवर्नमेंट इज ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर्मिंग कमिटीज कि स्टेट को चला जाएगा पैसा, इसको रह गया, इसको नहीं गया, ये रोने आ गया, ये ऐसा है वैसा है. बट लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. कंपेंसेशन सेस भी लगता है सर जीएसटी के साथ. एंड द पर्पस ऑफ लेविंग कंपेंसेशन सेस वाज टू कंपेंसेट द स्टेट्स जिनको जीएसटी आने की वजह से नुकसान हुआ. क्योंकि अर्लियर दे यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट ऑफ टैक्सेस. जैसा सर ने बिल्कुल सही बोला पंकज जी ने, दे यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट ऑफ टैक्सेस
जो डायरेक्टली उनकी किटी में जाते थे, बट जीएसटी आने की वजह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बंटने शुरू हो गए। तो एक कंपेंसेशन सेस लगाया गया, जैसे टोबैको पे कंपेंसेशन सेस लगाया गया, खैनी, जर्दा, सिगरेट्स, कार्स, एयरक्राफ्ट, यॉट, इन सब पे कंपेंसेशन सेस लगता है। मतलब जीएसटी तो जो रेट का लगेगा 28% का, अगर जीएसटी तो 22% का, एग्जांपल ले रहा हूं, 22% का कंपेंसेशन सेस भी लग के 50% टैक्सेस जो है लगेंगे। जैसे आपकी कार्स पे, कुछ कार्स पे एसयूवीज जो होती हैं 1500 सीसी से ऊपर की, उन पे 50% का टैक्स लगता है, 28% जीएसटी और 22% कंपेंसेशन सेस। अब सर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट। Just one point, I think if I'm correct, सेस का जो है वो वोट ऑफ चार्ज नहीं होता। तो सेस का जो अमाउंट है, क्या सेंटर स्टेट्स को डिवॉल्व करता है उसको? सॉरी, जो हम सेस लगा रहे हैं, एक टैक्स है, टैक्स सेंटर हमेशा थ्रू फाइनेंस कमीशन डिवॉल्व करता है, राइट? पर जितना मुझे आइडिया है, जो सेस का कंपोनेंट है, दैट ओनली गोज टू द सेंटर किटी, इट इज नॉट डिवॉल्व टू द स्टेट्स, इफ आई एम करेक्ट। ideally it should be, sir, because the entire purpose of compensation cess was to compensate the state governments. So ideally it should go initially, in the initial years, maybe 2-3 years back, we have heard the news that state governments are complaining that हमें compensation cess का पैसा ही नहीं मिल रहा है। So that why am I adding it? Because finance commission में ये change हुआ devaluation tax में, जब finance commission क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर 5 साल में finance commission बंद करता है, take it 1 minute, फाइनेंस कमीशन एक पैसा ट्रांसफर करता है स्टेट्स को, उसमें जो टैक्स होता है वो वोट ऑफ डिमांड होता है, आपका अप्रूवल लेना होता है पार्लियामेंट के अंदर, और वो स्टेट्स में आपको ट्रांसफर करना मैंडेटरी होता है। पर जो सेस का कंपोनेंट जो अनमोल ने सही बताया, वो स्टेट्स कंप्लेन कर रही हैं, रीजन क्या है, सेस का कंपोनेंट सिर्फ सेंटर के पास रहता है, वो स्टेट को डिवॉल्व ही नहीं होता। it goes to the consolidated fund of India first, then it needs to be apportioned, but it is not being apportioned. One more interesting thing, sir, I'll add. Compensation cess, sir, forever levy नहीं है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो compensation cess आया वो 5 साल के लिए आया था, और the period has been notified, वो सरकार ने कंटिन्यू ही करा दिया, जबकि ideally there is a sunset clause on the compensation cess. It is not a forever cess. जैसे GST is a forever tax कि लगेगा, जब भी आप करोगे लगेगा। Compensation cess comes with a deadline, but जैसा सा लड़ाई झगड़ा चल रहा है, लेट अस सी व्हेन द डेडलाइन अप्रोचेस। अब सर हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लेट अस डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ आईटीसी। एवरीवन नोज आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है सर आईटीसी? आईटीसी टैक्स ऑन टैक्स को बचाने के लिए कंसेप्ट लाया गया, जो कि नया कंसेप्ट नहीं है जीएसटी में। इट कम्स फ्रॉम द erstwhile regime, under the erstwhile service tax regime. It came into effect from 2004 itself, SENVAT credit rules के नाम से। क्या होता है सर आईटीसी? बेसिकली ए ने बी को बेचा 100 रुपए का माल, बी ने सी को बेचा 110 रुपए का माल 10 रुपए मार्जिन लगा के, और सी ने डी को बेचा 120 रुपए का माल 10 रुपए मार्जिन लगा के। अब अगर मान लीजिए 100 रुपए का माल जब ए बी को बेच रहा है, उस पर 18 रुपए जीएसटी लगा रहा है, तो बी को वो माल कितने का पड़ा? 118 रुपए का। अब बी जो है वो ट्रेडर है, ए मैन्युफैक्चरर था, बी ट्रेडर है। अब जब बी उस माल को बेचने जाएगा, तो अगर उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा वो 18 रुपए का जो उसने ए को पे किया टुवर्ड्स हिज परचेजेस, इन दैट केस उसकी कॉस्ट कितनी बनी? 118 रुपए। वो उस पर 10 रुपए का मार्जिन जोड़ेगा, तो क्या होगा? वो जो बी सी को बेचने जाएगा तो वो 128 रुपए का बेचेगा। क्लियर है सर? सिंपल कंसेप्ट है, 128 रुपए का बेचेगा। तो बी क्या करेगा? वो 128 पे 18% जीएसटी लगाएगा। तो जो 18 रुपए का उसको क्रेडिट नहीं मिला, उस पर टैक्स लग गया। तो ऐसे एक्यूमुलेट होते 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 जो एंड कंज्यूमर है, जो खरीदता है, जब हम मार्केट जाते हैं उस चीज को खरीदते हैं, तो हमें वो आइटम में भी 200-250 रुपए की पड़ेगी, जिसमें टैक्स ऑन टैक्स होता हुआ आ रहा है। 18 रुपए पे जीएसटी लगा, 19 रुपए 80 पैसा हो गया, फिर वो कॉस्ट का पार्ट बना, फिर जीएसटी लगा 21 रुपए हो गया, फिर जीएसटी लगा 23 रुपए हो गया। तो वो क्या है कि अगर आपको 200 रुपए का माल मिल रहा है, तो 100 रुपए तो उसमें जीएसटी ही एक्यूमुलेट होता चला आ जाएगा। तो इसलिए कंसेप्ट लाया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब क्या होएगा कि अगर बी आगे फर्दर उस गुड्स को खरीद के सेल आउट कर रहा है और उस पर जीएसटी पे कर रहा है, तो 18 रुपीज का क्रेडिट ले सकता है। जब उसको आउटवर्ड सप्लाई पे, लेट अस सपोज उसके आउटवर्ड सप्लाई पे जीएसटी लगेगा 19 रुपए 80 पैसा, 110 रुपए पे 18% के हिसाब से, तो उसको 19 रुपए 80 पैसा सरकार को नहीं देना, उसको उस 19 रुपए 80 पैसे में से 18 रुपए तो एडजस्ट मार देने कि सर आई हैव ऑलरेडी पेड टू ए, आई हैव इट इन माय लेजर, आई हैव पेड टू ए, प्लीज एडजस्ट दिस। और 1 रुपए 80 पैसा ही जो है वो नेट, जो 10 रुपए की उसने वैल्यू एडिशन करी उस गुड्स पे,
उसका 18% मतलब 1 रुपये 80 पैसे ही नीड्स टू पे थ्रू हिज ओन अकाउंट, ही नीड्स टू पे थ्रू कैश। तो इससे क्या हुआ, एक्यूमुलेशन हुआ क्रेडिट का? नहीं हुआ। सिर्फ वैल्यू एडेड जो हो रही है, वैल्यू एडिशन हो रही है हर चेन पे, ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, उस वैल्यू एडिशन पे 18% जीएसटी लगता जा रहा है। ओरिजिनल सप्लाई पे बार बार 18% जीएसटी नहीं लग रहा है। तो कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट जो है वो 150 रुपए में मिल जाएगा, जो अगर नहीं लगता तो 200-250 रुपए का पड़ता। Can we have a budget benefit also, please? I'll come to that, sir. Now, regarding the budget, सर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। क्या जीएसटी का बजट साल में एक बार आता है? नहीं, अब तो जीएसटी का बजट सर क्वार्टरली आता है। Why I am saying so? GST has been developed in such a manner that first any change needs to be approved by the GST Council. Once it is approved by the GST Council, only then it can be laid down before the Lok Sabha by way of finance bill. अब GST काउंसिल की मीटिंग हर 3 महीने में होती है, तो आप देखते होंगे आपको अपडेट्स आते हैं, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अपडेट आए, ये 6 चीजों पे आइटम रेट कम कर दिया। बजट का रेलेवेंस कहां रह गया अब जीएसटी में? सिर्फ और सिर्फ वहां रह गया जब एक्ट में चेंज करना है। इफ यू वांट टू मेक द चेंजेस टू एनी जीएसटी रेट, budget is not required. Earlier under the service tax law it used to come through the budget only. कि अगर कोई भी टैक्स रेट में चेंज करना है, कोई सेस लगाना है, कोई एग्जम्पशन देनी है, इट यूज्ड टू कम थ्रू बजट ओनली। साल में एक बार चेंज आता था सर्विस टैक्स लॉ में, एक्साइज लॉ में। अब तो सर पूरे साल ही चेंज आ रहे हैं। तो इसलिए बजट जो है सर अब तो साल में 4 बार आता है। नाउ लेट अस कम टू व्हाट बजट ने क्या चीजें लाया। थोड़ा टेक्निकल है सर, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, समझ आएगा। अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 there is a definition of local authority. Why that definition is relevant? Because local authority को बहुत सारी exemptions दी गई है। प्लस अगर आप local authority से कोई सर्विसेज अवेल कर रहे हैं तो you are liable to pay GST under RCM, जो मैंने अभी समझाया, recipient has to pay to the government exchequer। तो local authority की डेफिनेशन में ना बड़े सारे डिस्प्यूट्स थे, क्योंकि उसकी डेफिनेशन का सी क्लॉज बोलता है कि जिला परिषद या कोई भी कमिटी या कोई अथॉरिटी जो लोकल फंड या म्युनिसिपल फंड को एडमिनिस्टर करती है। अब लोकल फंड और म्युनिसिपल फंड कहीं एक्सप्लेन्ड ही नहीं था, तो इट यूज्ड टू कम, अ लॉट ऑफ लिटिगेशन यूज्ड टू कम। जैसे सर ने बोला प्रैक्टिकल, आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल अप्रोच। अ लॉट ऑफ लिटिगेशन यूज्ड टू कम कि म्युनिसिपल फंड, लोकल फंड क्या होता है। तो सब ने दूसरे लॉज की डेफिनेशन को रेफर करके लोकल अथॉरिटी में अपनी सहूलियत के हिसाब से या तो डाला या बाहर निकाल दिया। समझाने के लिए वो म्युनिसिपल फंड सिंपल भाषा में, बहुत मेरी वो लाइन ही पब्लिक फाइनेंस का, हम एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल की बात करते हैं, सबको पता है यहाँ पर। आई नो बच्चे रेस्टलेस हो रहे हैं, बट आपके बेनिफिट के लिए चीज़ें हैं, ठीक है। जब हम भी स्टूडेंट थे, वहाँ बैठते थे, तो सिर्फ वॉच देखते हैं कब निकलना है, डोंट वरी, राइट। बट कुछ चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए, तो एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल होता है। बट शहरों में, जब हम शहर में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, जैसे मान लीजिए दिल्ली का शहर NCD है, मैं झारखंड में काम कर रहा हूँ, रांची है वहाँ पर, तो वहां पर एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल नहीं होता, दैट इज फंड, जो हम एनपीओ पढ़ते हैं। एट एनपीओ में यू नेवर यूज कैपिटल, यूज द फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अनमोल उसी की बात कर रहे हैं। तो अब सर बजट में क्या किया, लोकल फंड और म्युनिसिपल फंड की डेफिनेशन लॉ में ले डाउन कर दी, जिससे लिटिगेशन खत्म हो जाएगी। जो अपने हिसाब से म्युनिसिपल फंड और लोकल फंड की डेफिनेशन को डिराइव किया करते थे दूसरे लॉज से, दैट विल नॉट बी देयर। सेकेंड बात करते हैं वाउचर्स। सोडेक्सो के वाउचर्स, कूपन्स आप लोगों ने सबने कभी ना कहीं यूज किए होंगे। देयर वाज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी। जैसे सर ने बोला गब्बर सिंह टैक्स, डेफिनेटली, बट आई वुड से इन द लास्ट 1 year और सो द गवर्नमेंट इज गिविंग एम्पल क्लैरिफिकेशंस। लॉ को जितना स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश है वो की जा रही है, और बहुत सर्कुलर्स निकाले जा रहे हैं, बहुत बेनिफिट दिए जा रहे हैं। वन सच एग्जांपल इज टैक्सेबिलिटी ऑफ वाउचर। तो पहले क्या होता था, वाउचर मैंने सर को दिया, जीएसटी डिपार्टमेंट आ जाता था कि तुमने वाउचर दिया, टैक्स पे करो। वी यूज्ड टू से, सर मैंने कोई सर्विस थोड़ी ली, इज देयर एनी क्विड प्रो क्यो व्हेन आई एम गिविंग अ वाउचर टू द अदर पर्सन, दिस जस्ट मनी व्हिच हैज चेंज हैंड्स। मेरे पास 100 रुपए का वाउचर पड़ा था, मैंने सर को दे दिया, 90 रुपए सर से ले लिए, एग्जांपल है वाउचर के अगेंस्ट। सो देयर इज नो सप्लाई पर से, व्हेन दैट वाउचर विल बी रिडीम्ड देन देयर विल बी अ सप्लाई, दिस जस्ट अ ट्रांजैक्शन इन मनी। तो उस पे जो है क्लैरिफिकेशन निकला, और इन्होंने अब जो वाउचर पे टैक्सेबिलिटी का कंसेप्ट था, सरल भाषा में बात करूं, दैट हैज बीन ओमिटेड बाय दिस फाइनेंस बिल। अब सर जो अगली इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, मैं कहूंगा 2 इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है सबसे ज्यादा फाइनेंस बिल में।
One I am going to discuss, the other one I will go discuss after this. थोड़ा टेक्निकल है, बट अगर आप समझेंगे तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं प्रैक्टिकल अप्रोच देता हूँ. हमारे जीएसटी में जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं तो देयर इज अ सेक्शन 17 सबसेक्शन 5. 17(5) में कुछ क्रेडिट्स ऐसे हैं जो ब्लॉक्ड है, मतलब मैं उनका क्रेडिट का नहीं ले सकता. जैसे मोटर व्हीकल है, कोई भी बिजनेस मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं ले सकता अनलेस एंड अनटिल वो टैक्सी का काम करता है. अगर मैं टैक्सी का काम नहीं करता तो मैं ये नहीं कर सकता मैं गाड़ी खरीद लाया और मैंने उसका क्रेडिट अपने बिजनेस में ले लिया. तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन सर्विस है दैट इज ब्लॉक्ड. अगर एग्जांपल है कॉलेज कंस्ट्रक्शन करवा रहा है तो उस पे जो जीएसटी पे कर रहा है, कॉलेज इज नॉट एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी ऑफ दैट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज. इसकी दो एंट्री है सर, एक एंट्री सी और एक एंट्री डी. सी बात करती है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की, कंस्ट्रक्शन सर्विस की, और डी एंट्री बात करती है गुड्स और सप्लाईज सर्विसेज अलग अलग. जैसे एग्जांपल है मैंने सीमेंट खरीदा, मैं उसका भी क्रेडिट नहीं ले सकता. मैंने किसी ठेकेदार को रख के उससे कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली, मैं उसका क्रेडिट नहीं ले सकता. मैंने किसी से प्योर सर्विस ली, मतलब गुड्स इन्वॉल्व नहीं थे, सिर्फ सर्विस ली, तो उसका भी क्रेडिट अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है आई कैन नॉट अवेल. लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है प्लांट एंड मशीनरी. इसका एक एक्सेप्शन है प्लांट एंड मशीनरी कि अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो मैं ले सकता हूं. तो एक प्रोविजन में लिखा सी में प्लांट एंड मशीनरी और एक में लिख दिया प्लांट और मशीनरी. तो वैसे तो आइडियली क्रेडिट अलाउड नहीं था, लेकिन क्या हुआ है गुजरात हाईकोर्ट की जजमेंट आ गई फेवर में सफारी रिट्रीट्स के केस में, जिसमें उन्होंने बोला कि मॉल बनाने के लिए अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो मेरे को उसका क्रेडिट मिलेगा क्योंकि मैं मॉल की दुकानों को लीज आउट करने वाला हूं. वो डिपार्टमेंट ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में. अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी एसएससी के फेवर में आ गई. आप लोगों ने सब ने, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप लोगों ने वोडाफोन का केस सुना होगा इनकम टैक्स में कि सरकार को रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लॉ बदलना पड़ा. दिस इज वन सच एग्जांपल ऑफ द जीएसटी लॉ. सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट फेवर में आ गई, लेकिन इस फाइनेंस बिल में क्या करा, प्लांट और मशीनरी को प्लांट एंड मशीनरी कर दिया 1 जुलाई 17 से, और वो लिटिगेशन ही खत्म कर दी. और एक्सप्लेनेशन में डाल दिया कि कोई भी जजमेंट इस देश की हो विल नॉट एक्सेप्ट. लॉ में ही ये लिख दिया कि प्लांट और मशीनरी को हमेशा से प्लांट एंड मशीनरी पढ़ा जाएगा. एंड देयरफॉर वो सफारी रिट्रीट्स की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगा, वो नलीफाई कर दी गई है. तो वोडाफोन वाला केस रिपीट हुआ जीएसटी में. लॉ को 1 जुलाई 17 से अमेंड किया गया. इसकी वजह से करोड़ का जो टैक्स है, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लोग हैं जिन्होंने क्रेडिट ले रखे हैं, उन सब पे डिनाई हो जाएंगे क्रेडिट एंड दे नीड टू पे द क्रेडिट बैक टू द गवर्नमेंट, एंटेलिंग ह्यूज फाइनेंशियल बर्डन. अनमोल, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनीज ने इन्वेस्ट करना बंद कर दिया शेयर मार्केट में, सबको डिमांड आने वाली है. सर देयर इज दिस वन इंपॉर्टेंट फंडा सर. ये जरा दोबारा समझाओगे आप? यस सर. सर मैं कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट मेरे को सेक्शन 17(5)(c) में सर्विसेज का अलाउड नहीं है, बट द टर्म दैट हैज बीन यूज्ड इन 17(5)(c) इज प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन डिफाइंड इन द जीएसटी लॉ. जो सेक्शन 17(5)(d) है, जो गुड्स और सर्विसेज की अलग अलग बात करता है, नॉट द कंपोजिट वन, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस की नहीं, वो बोलता है प्लांट और मशीनरी. तो क्या हुआ सर, गुजरात हाईकोर्ट में केस गया, एसएससी ने बोला, कह रहा सर एक बात बताओ, प्लांट एंड मशीनरी तो आपने डिफाइन कर दिया, अपैरेटस, इक्विपमेंट्स वगैरह, प्लांट और मशीनरी में तो मेरे पास दो चीजें हैं ना, एक प्लांट एक मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी इज अ नैरो स्कोप, प्लांट और मशीनरी इज अ वेरी वाइड स्कोप, बिकॉज आई कैन इंटरप्रेट प्लांट सेपरेटली, मशीनरी सेपरेटली. और प्लांट में तो सर कुछ भी आ जाता है. आपने इनकम टैक्स की हम जब पढ़ते थे तो हमने एक जजमेंट पढ़ी थी कि एक सीए ने बोला मेरा हार्ट मेरा प्लांट है. मैंने जब सीए के कोर्स में पढ़ा तो देयर वाज दिस वन जजमेंट जिसमें सीए ने बोला मेरा हार्ट मेरा प्लांट है, मेरा हार्ट ही नहीं चलेगा मैं सर्विस कैसे दूंगा. सो इसलिए प्लांट इज अ वेरी वाइड एम्बिट. तो उसको इंटरप्रेट करके गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि कंस्ट्रक्शन का क्रेडिट मिलेगा. डिपार्टमेंट कहता है ऐसे कैसे मिलेगा, मैं तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट. सो मैटर वाज पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एंड आई बिलीव दिस ईयर इटसेल्फ वेरी रिसेंटली the Supreme Court has pronounced the judgment partially in favor of the taxpayers. They have laid down that what should be covered under plant and what should be covered under machinery, and they remanded the matter back to Gujarat High Court कि आप इस पे principles lay down कीजिए जो पूरी इंडस्ट्री फॉलो करेगी. इससे पहले सर वो गुजरात हाई कोर्ट ले डाउन करता है, इन्होंने 1 जुलाई 17 से प्लांट और मशीनरी को एंड मशीनरी कर दिया. कहते वो तो हमसे गलती से लिखना रह गया था, हमने डिक्टेट हिंदी में और किया था, इन्होंने इंग्लिश में और लिख दिया. मजाक कर रहा हूं सर, बट इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव डेट से और मशीनरी को एंड मशीनरी कर दिया, जिसकी वजह से उसका एम्बिट फिर से रेस्ट्रिक्ट हो गया सर.
ये इस फाइनेंस बिल में हुआ है. दैट इज द रीजन आई सेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो. नाउ कमिंग टू सर, बस मैं एक और डिस्कस करूंगा. अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मे बी फ्यू इयर्स डाउन द लाइन आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, जो भी इसमें यहाँ पे सीए एस्पिरेंट्स हैं, दे विल फेस दिस थिंग. कितने सीए एस्पिरेंट्स बैठे हैं? कितने सीए एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे? आई बिलीव काफी होंगे. मैं एक लास्ट में सर आपके लिए ना, आप सबके लिए एक ब्रदरली एडवाइस भी शेयर करके जाऊंगा. आई वाज थिंकिंग व्हाइल कमिंग हियर बिकॉज आई बीन हेडिंग अ डिवीजन इन माय फर्म, सो आई वर्क विद अ लॉट ऑफ आर्टिकल असिस्टेंट. सो मेरे को उनके फीडबैक के बेसिस पे आई वांट टू शेयर अ फीडबैक विद यू, बट एट द वेरी एंड. नाउ लेट अस कम बैक टू द बजट. सर बजट की बात करते हैं तो एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की गई. जब मेरा ऑर्डर एक अगेंस्ट का आ जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, डिपार्टमेंट बोलता है 100 रुपए आपको देने, तो बोलता है 100 रुपए आपको देने हैं, 50 रुपए का इंटरेस्ट देना, 10 रुपए की पेनल्टी देनी है. तो जब मैं अपील करता हूं तो देयर इज अ मैकेनिज्म इन द जीएसटी लॉ व्हिच सेज दैट यू नीड टू मेक अ मैंडेटरी प्री डिपॉजिट अगर आपको अपील फाइल करनी है. प्री डिपॉजिट का मतलब क्या है कि जो लायबिलिटी आपकी बनती है एज पर द ऑर्डर, उसका कुछ हिस्सा आप जो है सरकार को एडवांस में जमा कराइए. जीत जाएंगे तो रिफंड हो जाएगा, हार जाएंगे तो बाकी बचा आपसे ले लेंगे हम, तो कुछ जमा कराइए. तो वो जो है 10% का फर्स्ट अपील में है. लेकिन उन केसेस में जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेनल्टी की डिमांड है या इंटरेस्ट और पेनल्टी की डिमांड है, मतलब टैक्स की डिमांड नहीं है, देयर वाज नो सच कंसेप्ट ऑफ प्री डिपॉजिट. दो वेरी इंपॉर्टेंट, दो इट वाज देयर इन द अर्स्टवाइल सर्विस टैक्स रिजीम था और डेलिबरेटली जीएसटी में नहीं लाया गया. बट इन्होंने अब क्या किया, इस फाइनेंस एक्ट में, फाइनेंस बिल में सॉरी, उस प्रोविजन को भी इंकलकेट कर दिया कि अब अगर पेनल्टी वाले नोटिस भी हैं तो भी 10% आपको जमा कराना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइट द अपील. अब आप कहोगे अनमोल ये क्या है, तो बहुत सिंपल कंसेप्ट था. नहीं सर, हमने देखे अभी आप लोग अगर जितने भी सीए एस्पिरेंट्स हैं, दे मस्ट बी सीइंग दिस काइंड ऑफ न्यूज कि बोगस इनवॉइसेस पे करोड़ों की पेनल्टी लगाई गई. अब उन सबको जिन पर 150-200 करोड़ की पेनल्टी लगाई, उन सबको 10% जमा करा के ही दे कैन कंटेस्ट द अपील. Without depositing, they cannot contest the appeal. Once this provision comes into force, it is not come into force till now. एक छोटी सी अमेंडमेंट और है सर, क्रेडिट नोट अगर मैं अपने बिजनेस में शेयर करता हूं तो देयर इज अ एडेड कंप्लायंस बर्डन ऑन माय पार्ट. मैंने 100 रुपए की सर्विसेज दी अप्रैल के महीने में, 18 रुपए जीएसटी पे कर दिया. 6 महीने बाद जाके सितंबर में मेरे को पता चला कि मुझे 20 रुपए की सर्विस अपनी रिड्यूस करनी है, क्योंकि एक्चुअली में 80 रुपए की ही सर्विस रेंडर हुई थी. तो मैं 20 रुपए का क्रेडिट नोट दे देता हूं सामने वाले को और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग 18% के हिसाब से 3 रुपए 60 पैसे का जीएसटी भी उसको वापस कर देता हूं. लेकिन मैंने अपना जो 100 रुपए पे जीएसटी पे किया था वो तो 18 रुपए का पे किया था. तो देयर इज अ मैकेनिज्म इन द जीएसटी लॉ व्हिच सेज कि वो जो 3 रुपए 60 पैसे मैंने उसको वापस कर दिए, मैं अपनी आउटपुट लायबिलिटी में से एडजस्ट कर सकता हूं, जिससे नेट मैंने जो है 18 माइनस 3 रुपए 60 पैसा ही पे करूंगा जो मेरी सर्विस की वैल्यू है. अब उसमें एक एडेड कंप्लायंस क्लॉज डाल दी कि जब तक सामने वाला 3 रुपए 60 पैसे, क्योंकि जब मैंने 18 रुपए पे किया तो सामने वाला तो आईटीसी ले गया होगा, उसने तो आईटीसी ले लिया, तो जब तक वो 3 रुपए 60 पैसे का आईटीसी रिवर्स नहीं करता, आई वोंट बी एबल टू ऑफसेट माय आउटवर्ड लायबिलिटी. दो आई हैड अ लॉट ऑफ, बिकॉज स्पीकर है, जब तक हटाओगे नहीं हटेंगे नहीं. I had a lot of content that I wanted to discuss, but one very important thing I want to discuss. There is this one amnesty scheme that has been recently introduced under the GST law. I have written a book also on that. Sir, GST law में सबसे पहली स्कीम है जो आई है, बहुत ब्रीफ में, हार्डली आई विल टेक 1 मिनट. पहले 3 साल में जिन्होंने भी जेन्युइन बोनाफाइड मिस्टेक कर दी गई है, क्योंकि मेरे को सर ने बोला कि मेनी ऑफ यू कम फ्रॉम अ बिजनेस क्लास फैमिली, सो मे बी हो सकता है कि आपके भी फैमिली बिजनेस में कोई डिमांड आ गई हो अननेसेसरी, सो यू मे बेनिफिट फ्रॉम दैट. 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20 इन 3 साल में जो जेन्युइन बोनाफाइड मिस्टेक्स वाले एसएससी हैं जिनकी डिमांड बन गई है, they can choose not to pursue the litigation. They have to pay the 100% dues that has been determined by the government. एंड इंटरेस्ट और पेनल्टी से 100% वेवर जो है मिल जाएगा. ब्रीफ में बात करूं तो सर ये है, बाकी स्कीम पे भी मेरा शाम को 1.5 घंटे का लेक्चर है, तो स्कीम में और चला जाऊं तो, बट दिस इज व्हाट आई फील दैट अगर आपके पास कोई नोन में रिलेटिव में केस है तो दिस इज वन इंपॉर्टेंट स्कीम दैट यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ. I don't think it is going to be compensation cess is going to be ended very soon. Even if we see the anti-profiteering authority,
It was not forever authority. The timelines for that authority continued to extend even under the GST law. It was there. Ideally, it was only for the transitional phase. बट काफ़ी सालों बाद जाके उसको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मर्ज किया गया, उसको अथॉरिटी खत्म करी गई. सो इन द नियर फ्यूचर आई डोंट एक्सपेक्ट, मे बी 1 year or 2 years down the line, I don't expect, unless there is a political pressure or there is a pressure from the industry, that industry, automobile industry itself, because मेजर दो ही सप्लाईज मुझे दिखते हैं, एक तो ऑटोमोबाइल है और एक टोबैको है. टोबैको वालों की कुछ सुनेगा नहीं इतना ज़्यादा अनलेस देयर इज अ पॉलिटिकल प्रेशर. बट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से अगर बहुत ह्यूज प्रेशर आता है, जो आई डोंट सी, आई मीन द चांसेस आर वेरी रिमोट. अभी तो वही लड़ाई चल रही है सर स्टेट को बांटने की, पहले तो वो सॉल्व हुए. थैंक यू. कि द मिल्क, जो मिल्क पे जो टैक्स लगता है जीएसटी, वो 0%, बट एक्चुअली आफ्टर द अमेंडमेंट 2022 the GST tariff on the milk is 5%. सर उसमें ना बड़े सारे तामझाम है, जैसे प्री पैकेज, पैकेज, ओपन, एग्रीकल्चरिस्ट बेच रहा है, कौन बेच रहा है, वो ऐसे करके कंसेप्ट हैं. मतलब वी कैन नॉट, मतलब ब्रिंग इट इन अ सिंपल फॉर्मूला कि पूरे मिल्क पे टैक्स है. अब जैसे वाटर है, अगर आप पानी नॉर्मल बेच रहे हो इट इज 0%, लेकिन अगर आप उसको बॉटल्स में एरिएटेड वाटर करके बेच रहे हो इट इज अ टैक्सेबल कमोडिटी. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स कम इनटू फोर्स कि कौन बेच रहा है, कैसे बेच रहा है. कमर्शियली बेच रहे हो तो टैक्स है, अगर नॉन कमर्शियली बेच रहे हो फॉर द कंजम्पशन इट इज नॉट टैक्सेबल, लाइक दैट. So regarding the plant and machinery change, so since it is a retrospective change, do we expect for bigger companies to be another Vodafone like high debt companies? No, I don't think so, because there is a reason. I myself is contesting a case of 32 CR. I belong from a litigation background actually. I've been contesting cases of many taxpayers. Actually what has happened is, before this Gujarat High Court judgment coming into force, there was a clarity in the industry that this credit is not eligible. तो इसलिए किसी ने लिया ही नहीं था. प्रॉब्लम क्या हुआ, गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट आते ही एक मार्केट में वो मच गई तबाही कि ये तो अलाउ कर दिया, हम ले नहीं रहे, हम क्यों नहीं ले रहे. और फिर जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की एक सनसेट डेट है कि आप इस डेट के बाद क्रेडिट नहीं ले सकते, आपका क्रेडिट लैप्स हो जाएगा. तो लोगों ने क्या करा, ले लेके रख लिया, यूटिलाइज नहीं करा. देयर इज अ थिंग कि ले लिया और देयर इज अ थिंग यूटिलाइज के लिए, अवेल्ड एंड यूटिलाइज. सो दे हैव अवेल्ड. इवन इन माय केस, द केस दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग, दे हैव गिवन अ स्टैट ऑडिटर्स नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब स्टैट ऑडिटर ने डिस्क्लोजर ही दे रखा है बकायदा बैलेंस शीट में कि दिस मच अमाउंट ऑफ दिस मच करोड्स ऑफ क्रेडिट वी हैव अवेल्ड एज पर द जजमेंट ऑफ सफारी रिट्रीट्स, बट इन फ्यूचर इट इज रिवर्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट और द लॉ इज रिवर्स्ड, वी आर रेडी टू रिवर्स इट बैक. सो लोगों ने सिर्फ लेके रखा हुआ, उसको यूटिलाइज किसी ने किया ही नहीं. तो इसलिए मेरे बिजनेस पे वो जिसने यूटिलाइज कर दिया उसको इंपैक्ट आएगा, जिसने यूटिलाइज नहीं करा वो तो एक सेकंड में रिवर्स कर देगा, और यूटिलाइज नहीं करा तो इंटरेस्ट पेनल्टी भी नहीं आएगी. तो सिर्फ जो शुरू से मेरा नहीं था वो मैंने वापस दे दिया. लेकिन हाँ, जिसने डे 1 से ले रखा है उनको दिक्कत आ सकती है. और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो वैसे तो सर हमारे बीच है सर से ऊपर तो मतलब बहुत छोटी बात है मेरा बोलना, बट कंस्ट्रक्शन सेक्टर में तो आए दिन हम देखते हैं कोई कंपनी आज खत्म हो गई, कल खत्म हो गई, ये चलता रहता है. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप यू हैड अ enlightening session. Thank you so much. Thank you. One brotherly advice before clapping. Please. One brotherly advice. जो भी CA aspirants है, I would urge you, don't become a journalist, become a specialist. And compliance में कोई future नहीं है. I feel sir, I apologize अगर if I'm please. going beyond my territory. The scope, the future is of litigation. Or if you don't want to go into the taxation profile, go for certain profiles. Though गौरव सर हमारे साथ हैं, he has been the chairman of NIRC. ये सारे नॉर्थ रीजन के CS के करता धरता रहे हैं, तो उनको ये ज़्यादा he'll be able to guide you. But forensic audit हो गया, ESG हो गया, जो सर ने बोला 2070 तक net zero की बात चल रही है. So go into a specialized field. Don't go for the compliances. Compliance field में already बहुत भीड़ है सर, कोई फायदा नहीं है. Go for the specialized field, and if you are going for the taxation law, I would request you, I have been myself practicing under the litigation, go for the litigation profile. This has been the feedback of my article assistants that coming into the litigation profile has been the best decision that we have made. So yeah, thank you so much. Thank you Anmol. Before we invite Mr. Ashish, just being a CA, because मेरे को भी आज almost 23 years हो गए CA क्लियर करे हुए. So just one advice, even Anmol ने भी हमारी फील्ड के बारे में मेंशन नहीं किया. When I cleared my CA, I was very clear कि मुझे ऑडिट पे नहीं जाना, अकाउंटिंग में नहीं जाना, टैक्सेशन में नहीं जाना. I was very clear.
मुझे समझ में नहीं आता रूटीन जॉब्स, तो आई एंटर इनटू अ वेरी डिफरेंट फील्ड विच इज द पब्लिक फाइनेंस, स्मार्ट सिटीज। आप देखें सिर्फ एक मिनट लूंगा, 2015 में पूरे इंडिया में पार्क्स में जिम देख रहे हो आप, ओपन जिम, उससे पहले तो नहीं थे। दैट इज आवर एरिया। स्मार्ट सिटीज बनी है, तो स्मार्ट सिटीज को पैसा कहाँ से आता है? प्रॉपर्टी टैक्स आप पे करते हो, पानी का बिल पे करते हो, तो उसके रेट्स कौन डिजाइन करता है, राइट? तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया जिसमें नॉट इवन CA, MBA भी कर सकते हैं, राइट? मेरी डॉटर अभी अहमदाबाद से MBA कर रही है, इवन शी कैन एंटर इनटू पब्लिक पॉलिसी। सो ये भी एक लाइन है जहाँ आप एंटर कर सकते हो, जिसके लिए हम लोग अलग से बात कर सकते हैं कभी भी, राइट? नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट, बिकॉज आई नो बच्चे रेस्टलेस हो रहे हैं, भूख लग रही है, ठीक है? जस्ट मैक्सिमम 10 मिनट्स में क्लोज करेंगे इसको हम लोग, ठीक है? आशीष सर विद योर परमिशन, बिकॉज आपका वर्ड्स ऑफ विजडम आ जाए, तो आशीष सर विल बी बेसिकली फोकसिंग ऑन दी बजट का इकोनॉमिक ग्रोथ, स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे क्या फोकस है, ठीक है? तो ही विल जस्ट ब्रीफ, बिकॉज इनको भी निकलना है। This is the best time to speak because you all eagerly waiting for lunch. तो सबका ध्यान उधर है, तो मैं यहाँ बोलूँगा तो बढ़िया चीज़ है, और 5 ही मिनट लूँगा या 10 ही मिनट लूँगा, मैंने भी कहा। First of all, the faculty, students, I must thank you all for inviting me. It's like homecoming. I have come to my home after 40 years, and most of the things are as they were. यहाँ तक कि फूल पत्तियाँ भी वैसी, वो भी नहीं बदली। मुझे याद है मैं यहाँ पर 83-84 में आया था, और आई वॉज इन द स्पोर्ट्स कोटा। ज़्यादातर टाइम हम लोग स्पोर्ट्स यहीं खेलते थे फील्ड में, और हमारे यहाँ पर डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन थे श्री मंगल सिंह जी उस समय, और यहीं कहीं हमारा हुआ करता था स्पोर्ट्स हॉल एंड देन द ऑफिस। डोंट टेक मी अदरवाइज, बट व्हेन आई केम इन, मंगल सिंह जी ने कहा कि देखो बेटा, यहाँ पर तुम बीकॉम ऑनर्स में आ तो गए हो, तुम्हारे को कम से कम 20-25% अटेंडेंस तो लानी होगी। अटेंडेंस की बात हो रही है, मार्क्स की बात ही नहीं हो रही। मैंने सर कोई बात ही नहीं है। जब साल खत्म होने लगा तो देखा 8% अटेंडेंस थी, बिकॉज सारा टाइम फील्ड पे खेल रहे थे। आई वॉज कैप्टनिंग द हॉकी टीम फॉर ईयर 1, 2, 3. I was just sharing with Mandeep Singh ji also. Shah Rukh Khan was in our batch. He used to be in the forward line. Mark Robinson was in our batch. He used to be in the forward line. So this is before Shah Rukh met Gauri. और हम लोग समय अपना यही बिताते थे, और बहुत अच्छे दिन थे। मतलब मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि ये जो आपके 3 साल हैं, जिंदगी के सबसे हसीन साल यही हैं। इनको अपने दिल में संभाल के रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आगे काम आएंगे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ, और इंडस्ट्री को ये जो मेरे दाएं और बाएं बैठे हैं यही चलाते हैं, बिकॉज एडवाइस यही देते हैं। अगर ये लोग ना हो तो हम इंडस्ट्री चला नहीं सकते। आपको जो इन्होंने संक्षेप में ज्ञान दिया, आई वुड सजेस्ट कि आप इनका पीछा ना छोड़ें, बिकॉज यही लाइन टू सक्सेस होगी। आपके टीचर्स प्रोफेसर्स तो आपको समझा ही रहे हैं, बट रियल जिंदगी का जो निचोड़ है वो यहीं से आएगा। Having said that, we normally are interacting with the industry through and through, big or small. ये जो बजट है, इस बजट का जो थीम है वो आप सबको मालूम होगा, हमारा संकल्प विकसित भारत। विकसित भारत is 2047. I was very impressed when one heard this for the first time through the Prime Minister, Honorable Prime Minister. It shows that आपकी कंट्री कितना आगे तक प्लान कर रही है। ये बहुत कम देखने को मिलता है कि आप 25 साल आगे का प्लानिंग करके बैठे हो कि मुझे कैसे जानना है, उसका आप ब्लूप्रिंट बनाते हो। एक्सपर्ट्स जो हैं यहाँ सारे, बीट GST, बीट इनकम टैक्स, बीट लॉ। अभी आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, 4 लेबर कोड आने वाले हैं। ये इंडस्ट्री की बहुत अहम जरूरत थी। देखिए, हमको इनकम टैक्स और GST गाइड करता है, बट हमारे लेबर फोर्स को
अगर हम मोटिवेटेड नहीं रखेंगे, अगर हम वो लॉज नहीं सही रखेंगे तो हम कहीं नहीं जा सकते। हमारे को आज की तारीख में, जैसे आपने भी सुना, एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, आफ्टर दैट इज कंस्ट्रक्शन। अनफॉर्चुनेटली कंस्ट्रक्शन वेलफेयर अपसर्ज को इतना जोर नहीं मिल रहा है। अभी जैसे प्लांट एंड मशीनरी की बात आपने सुनी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो बेचारा ठेकेदार भी नीचे चला जाता है, जो बिल्डर है वो भी नीचे चला जाता है। तो हमें उनको उठाना है। इस बजट ने कोशिश करी है उसको एड्रेस करने की, बट पूरी कोशिश नहीं है। डेफिनेटली जिसको कहते हैं स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। दे हैव मेंशन अबाउट गरीब, यू, अन्नदाता एंड नारी। आई वाज जस्ट रीडिंग, मुझे अभी एक व्हाट्सएप आया हमारे चेंबर से, जो हमारे ऑनरेबल लेबर सेक्रेटरी हैं सुनीता धावरा जी, उन्होंने CII में अपना भाषण दिया और ये कहा कि 70% वर्कफोर्स हमारा वुमेन होना चाहिए, और हमारे बजट में भी यही है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल कंस्ट्रक्शन सेक्टर में आ जाता है। जहाँ पर हम अनस्किल्ड लेबर की बात करते हैं, वहाँ पर स्किल्ड फोर्स वुमन आ सकता है, जिसको हम लोग ऑलरेडी टेकअप कर चुके हैं। हमने ये भी देखा कि इस बजट में एम्फोसिस एग्रीकल्चर को काफ़ी दे रही है गवर्नमेंट। एक बड़ी सीधी सी बात है कि आज की तारीख में एक रिक्शे वाले का बेटा रिक्शा वाला नहीं बनना चाहता, एक टैक्सी वाले का बेटा टैक्सी वाला नहीं बनना चाहता, उसी तरीके से एक फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता। तो हाउ टू इनकरेज देम इज व्हाट इज देयर इन दिस बजट। यू हैव टू ट्रीट देम टू बी aware of skills required. You have to give them pesticides. You have to, I mean, I was surprised, एक कंपनी है IFCO करके जो कि फर्टिलाइजर बनाती है, सर वो ड्रोन्स यूज कर रहे हैं स्प्रेइंग ऑफ फर्टिलाइजर के लिए। अब ये गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है उनको, गवर्नमेंट उनको इंसेंटिव दे रही है फॉर दिस टेक्नोलॉजी। कोल्ड स्टोरेजेस आर बीइंग प्रमोटेड। ये एक पहले भी आई थी स्कीम, मुझे याद है गजेंद्र हल्दिया जी के टाइम पे, PPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन कोल्ड स्टोरेजेस। अब वो फिर से रिवाइव कर रहे हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हमारे शहरों के अंदर आ गए स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट के लिए। आपने देखा ही होगा इंदौर में जो बार बार क्लीनेस्ट सिटी बन रही है, जो उनका गार्बेज रिड्रेसल सिस्टम है, दैट इज RFID बेस्ड। अब obviously it is all the combination of government and private. This is all the outcome of, I would say, last 10 years initiative। अगर हम देखिए आज आपके लिए कितना आसान हो गया है बाजार जाना, और ये पैन इंडिया हो गया है। आपने जाके अपने पेटीएम से जो मर्जी खरीदना है खरीद लीजिए। इट्स वेरी सिंपल नाउ। This is basically not for probably you and me only. It goes down to the farmer level. It goes down to the worker level. इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, वर्कर बेनिफिट क्यों ज़रूरी होता है। वर्कर बेनिफिट इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब तक आप उसको एक अट्रैक्शन नहीं देते हो, वो गांव से निकल के यहाँ नहीं आता है। वो सिर्फ महज आज 10-15 हज़ार रुपये कमाने के लिए नहीं आता है। उसको अपनी सोशल सिक्योरिटी भी चाहिए, उसको अपना मेडिकल का सिक्योरिटी भी चाहिए। ये मेडिकल का और सोशल सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने इस बजट में डाला है थ्रू EPFO। तो मैं यहाँ बता रहा था, आई एम अ मेंबर देयर। EPFO एंड ESI, दे आर बोथ सिस्टर कंसर्न्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अभी तक हमारा मिनिमम थ्रेशोल्ड है 15,000 रुपये। एक वर्कर जिसका 15,000 रुपया है उसका PF कटेगा, उसके ऊपर उसका नहीं कटेगा। अब इसमें क्या हो रहा था, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं अलग अलग, उन्होंने अपना मिनिमम वेजेस बढ़ा दिया, तो लोग बेचारे सारे बाहर हो गए। अब सारे बाहर हो गए तो उनको जो प्रोविडेंट फंड का फायदा मिलना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी का फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। अब वो कहते हैं कि जी हम अपने गाँव में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना है, हम वही काम करेंगे, हम यहाँ आके क्यों करें, हमारे तो यहाँ पर खर्चे ही बहुत है। ये इसको 20,000 करने से हम दोबारा से इन्फ्लक्स कर देंगे। आज हमारे पास 7 करोड़ आदमी रजिस्टर्ड है, जिसको कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर्स। 7 करोड़ आज हमारे पास रजिस्टर्ड है आउट ऑफ 140 और 150 करोड़, जिसमें से अगर आप कहो आधे भी वर्किंग पॉपुलेशन है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, 10% भी नहीं। दूसरा ESI, आज की तारीख में विद ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ मेडिकेशन, जो प्रॉब्लम इलनेसेस की आ रही हैं, एक आदमी को चाहिए भाई मेरे को सिक्योरिटी मिल जाए, हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाए।
ESI ये आपको प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए। ESI भी एक एम्प्लॉयर काट के जमा कर देता है। PF में ये होता है कि आधा एम्प्लॉयर देता है, आधा एम्प्लॉय देता है। कंस्ट्रक्शन में जैसे आपने बताया, मेरे को थोड़ी सी नॉलेज है। कंस्ट्रक्शन में जो लेबर है वो कहती है कि साहब मैं दिहाड़ी पे अपना घर तो चला नहीं सकती, तो मेरा आप और 12.5% काट लोगे, मैं तो नहीं कटवाऊंगी। उसमें फिर फजिंग वजिंग शुरू हो जाती है। तो हमने ये रिकमेंडेशन दी गवर्नमेंट को कि सर आपके पास BOC बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स सेस होता है जो 1% देना पड़ता है एम्प्लॉयर को। ये इसका पैसा कोई 80-85 हज़ार करोड़ रखा हुआ है गवर्नमेंट। तो हमने ये सजेशन दी कि सर ऐसा है, आप हैंड होल्डिंग कर दो लेबर की, मतलब लेबर का पोर्शन आप इसमें से दे दो और एम्प्लॉयर अपना पोर्शन दे देगा। लेबर को 2 साल चला लो, उसके बाद उसको आदत हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट अभी सोच रही है, बिकॉज this will encourage, like I'm saying, this will increase the worker participation in the government. Now coming to the infrastructure side. इंफ्रास्ट्रक्चर साइड में क्या हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा आ गया। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मैंने जैसे बताया, ये रेलवेज में भी हो गई, नेशनल हाईवेज में भी हो गई, इनलैंड वाटरवेज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों ने ध्यान दिया है कि नहीं दिया, इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं होगी। वैसे ये जो आपके ईस्ट में रिवर्स हैं, ब्रह्मपुत्र वगैरह, उसमें कार्गो कंटेनर्स चल रहे हैं और क्रूजेज चल रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दिए हुए हैं, जिसमें ड्रेजिंग आती है, जिसमें पोर्ट स्टेशन मेकिंग आती है, जिसमें वेसल मूवमेंट आती है, ये सब प्राइवेट हो जाता है। ये बहुत, और गवर्नमेंट इसको बढ़ावा दे रही है। रेलवेज आपने देखा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर गवर्नमेंट प्राइवेट पार्टनरशिप से चल रहा है, और हाईवेज आपने देखे ही हैं कितनी तेज़ी से गवर्नमेंट बना रही है। प्रॉबेबली मैक्सिमम हमारा पर डे जो एवरेज आ रहा है वो गडकरी जी के ही अंदर आ रहा है। इसमें हमारे अलग अलग स्कीम्स होते हैं, हैम होता है, TOT होता है, BOT होता है, NUT होता है। ये सारे स्कीम्स बेसिकली इंडस्ट्री को हेल्प करने के लिए। उसके बाद उड़ान, आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है, इसमें गवर्नमेंट फिर से ज़्यादा जोर लगा रही है, 120 एयरपोर्ट लेके। मेरे को ऐसा लगता है, आई मीन वी कैन गो ऑन एंड ऑन विद दिस बजट, बट मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल this is a industry friendly budget. But of course, having said that, the nuances, experts here like them, experts outside will be only able to tell कि इसमें nuances क्या हैं। इसमें जैसे बता रहे थे कि एंड और में फ़र्क हो जाता है, तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं देख सकते। और ये जैसे डॉक्टर्स हैं हम लोगों के, ये हमारे को गाइड कर देते हैं, इसको कहाँ अगर आपका इलाज करना है, कैसे करना है, उसके बिना चल नहीं सकते। न्यूक्लियर एनर्जी, शिप बिल्डिंग, इसमें भी गवर्नमेंट ने इनकरेजमेंट दिखाई है। मैं तो सिर्फ इनमें मैं थोड़ा सा शायर किस्म का इंसान भी हूँ, तो क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, वैसे यहाँ पर नारी शक्ति ज़्यादा दिख नहीं रही है सर। जब लेबर सेक्रेटरी कह रही है तो आपको भी यहाँ करना है सर, बट द होल शो इज बीइंग मैनेज्ड बाय आई नो वो तो हर जगह ही होता है। तो मैं इंडस्ट्री से हूँ और आप लोग फ्यूचर हैं जो आएंगे हमारे फोल्ड में, इंडस्ट्री में, जिस भी रूप में आए। तो एक सर बड़ा पुराना गाना था, उसकी कुछ लाइनें मुझे ऐसे ही यहाँ पर याद आ रही हैं। वो ये है कि मैं थोड़ा सा चेंज कर दूंगा क्योंकि वो गाना थोड़ा, कि तेरा हाथ हाथ में हो अगर तो सफ़र ही असले हयात है, हमारे हर कदम पे है मंजिलें, तेरा साथ जो मेरे साथ है, मेरे बात का मेरे हम सफ़र, तू जवाब दे के न दे मुझे, तेरी एक चुप में जो है छुपी हजार बात की वो बात। ये इंडस्ट्री कहती है आपको कि आप इंडस्ट्री में आइए और हम साथ चलें और साथ मिलके आगे कदम बढ़ाएं। थैंक यू। So dear friends, we are privileged that we today had rather have a panel of experts, but special mention I would like to make over here that Ashish sir, as we all know,
is an alumnus of this college, visited after 40 years, and he assured that whatever help is required or needed from time to time, you can tell to him, and he's ready, whether it is an industrial visit or any other kind of industry interface. So we are thankful to you, sir, and we are thankful to all the families. Thank you. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I am here to provide a comprehensive report on today's insightful budget panel discussion. The discussion brought together a distinguished panel of experts and economists to analyze the key aspect of the latest budget and its potential impact on various sectors. So, as Pankaj sir mentioned in the very starting, that it will be a divine feeling of knowledge. So I believe after completion of this, I can say that I am sure the students had this experience of divine feeling. Alright, so we discussed about SDG 30 in the very starting and broad scope. We discussed about the vision 2020 2047. Then CA Gaurav sir mentioned about various direct taxes and indirect taxes, personal taxes, and also mentioned about the amendments that came in the new tax regime. And some real life practical and managerial implications were discussed very correctly. And I believe the people sitting over here, the students sitting over here must have got a very clear cut understanding about the tax process. And also he mentioned about the frequently asked questions that are implemented for the first time in the process of this. Alright, the next was CA Anmol sir. He mentioned about GST, taxable, non-taxable, and also he gave an example of old mobile. If he entered into a market, what will be the circumstances? He also mentioned about various local authorities, gave an example of Vodafone concept of plant or machinery. I'm sure the students and all the people sitting over here must have had a wonderful experience with it. We also discussed about 2015 smart cities, and just like sir mentioned, with regard to the open gym that came into the process. Next was we are pleased to have Ashish sir with us, our esteemed alumni of Hansraj College. He really shared some golden and precious moments spent during his college days at our college. And he also mentioned about Hamara Sankalp Viksit Bharat. That is the tagline this time for our budget. And throw some light on government and ESI infrastructure things. And in closing, the panelists discussed about some government initiatives like waterways, highways, triple B model, and that's it. Thank you very much to all the panelists. Thank you very much to everyone. Good afternoon, each and everyone present here. I think half of the work has been done by both Sagi sir and Himanshu sir. However, it's my privilege to deliver the vote of thanks. First and foremost, I would like to express my deepest gratitude to our distinguished speakers and panelists, Mr. Ashish Vir, Chairman, IRHR Committee, PhD Chamber of Commerce, CA Gaurav Gar, Chairman, Northern India Regional Council 2023-24, and CA Anmol Gupta, Chairman, GST Committee, for their engaging discussion and for sharing expertise with us. Your diverse perspective have enriched and understanding of the issues. Thanks for taking the time to be with us and for sharing your wisdom so impactfully. With thanks to our program moderator, CA Pankaj Goel sir, for his efficient managing the flow of discussion and ensuring to maintain a structured and engaging session. I would also like to extend our heartfelt thankful to our dynamic principal man, Professor Rama, for her guidance and blessings. We all are inspired and motivated with her vision and module of discipline and education. Further, my vote of thanks to our organizing team and convener Professor Manjeet Singh Sagi and all other conveners. Also thankful to our teacher in charge, Dr. Beauty Das, and all my colleagues which spare their valuable time with us. Especially thanks to our admin staff, especially our AO accounts, Deep sir, and our DAV audit committee, and our caretakers. Also my thanks to team ComSoft, as their dedication and hard work behind the scene have ensured the success of today's event. Without your efforts, this event would not have been possible. Last but not least, our audience, your presence and engagement have been truly remarkable. Thanks for your
active participation, your thoughtful questions, and your attentive listening. Thank you very much.